آپ کا حکم ہوا ہے کہ عظمت قرآن پر اور جو موقع ہے دستار بندی کا اس کے متعلق کچھ گفتگو کرنا ہے، اور ساتھ ہی سیدی سندی ذخری لیومی وقدی سرکار سیدنا خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمات پر بھی کچھ روشنی ڈالنا ہے، اور اسی بیچ میں ایک دو اور ذیلی عنوان بھی آ گئے ہیں۔ کوشش کروں گا کہ ان سب کو مختصر وقت میں سمیٹ کر اپنی خدمت کو مکمل کروں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اب آئیے ذرا اسی جیتے جاگتے ماحول میں محبت کے ساتھ، ادب و احترام کے ساتھ بارگاہ مصطفیٰ کریم اور بارگاہ آل مصطفیٰ میں وہی درود پڑھ لیں جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں نے درود کو کہا ہے، زبانیں آپ کی بند رہیں، بڑے افسوس کی بات ہے۔ سب لوگوں کی آواز بلند ہونا چاہیے، اور ہمارے یہاں تو ذکر بالجہر کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے اور دیکھنا بھی چاہیے۔ تو بلند آواز سے ذرا درود و سلام پڑھیں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ بہت پاکیزہ عمل ہے۔ آپ کی خاموشی نے مجھے ایک بات یاد دلا دی، اگر کہیں تو سنا دو۔ حالانکہ میں سنانے ہی آیا ہوں، مگر میں اس لیے اجازت مانگ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے کوئی یہ نہ کہے کہ عنوان سے ہٹی ہوئی بات بول گیا۔ سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالی عنہ جس ذات کو اپنے ساتھ غوث پاک کی اجازت سے لے کر آئے تھے، اسی کو زمانہ حضرت سرکار سیدنا قطب الدین بختیار کاکی کہتا ہے۔ آپ کی عادت کریمہ تھی رات کو سونے سے پہلے 3000 بار میرے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کیا کرتے تھے۔ ایک دو بار نہیں، 3000 بار آپ کی عادت کریمہ تھی۔ ایک کتاب ہے جس کا نام ہے جانشین غریب نواز، پروفیسر ڈاکٹر غلام یحییٰ انجم نے معتبر حوالوں سے اس کتاب کو تصنیف کیا ہے، لکھا ہے۔ اسی کے حوالے سے میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں، اور پہلے سوچ کے نہیں آیا تھا، بروقت ذہن میں آ گیا۔ حالات بنتے ہیں تو پھر بہت ساری چیزیں یاد آ جاتی ہے۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ تعالی علیہ، یہ وہی بزرگ ہے جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے ملفوظ شریف میں ارشاد فرمایا کہ ایک دن آپ کی بارگاہ میں سرکار سیدنا ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالی علیہ، جن کے لیے ہم اپنے شجرے میں کہتے ہیں بہر ابراہیم ہم پر نار غم گلزار کر۔ آمین تو بول دیں بھائی۔ یہ آپ کی جو خاموشی ہے نا 1947 میں ہوتی تو ملک آزاد بھی نہیں ہو پاتا۔ یہ تو اللہ کا فضل ہے کہ علامہ فضل حق خیر آبادی جیسی ذاتیں، بولنے والی ذاتیں موجود تھی، ہے نا؟ ہاں، توجہ فرمائیے گا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے حضرت ابراہیم ایرجی رحمت اللہ تعالی علیہ خواجہ قطب کے مزار پر حاضری دینے گئے، اور حاضری دے کر اس احاطے سے نکل کے باہر آ گئے جہاں محفل سما چل رہی تھی، اور باہر جا کر بیٹھ گئے۔ اتنے میں ایک بزرگ آئے اور کہا کہ ابراہیم ایرجی آپ یہاں بیٹھے ہیں، وہاں محفل سما جاری و ساری ہے۔ آپ نے فرمایا میں کچھ نہیں کہتا، آپ صاحب کشف و کرامت ہو، قبر کے قریب جا کر دیکھو حال کیا ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ گئے اور جا کر سلام عرض کیا، اور آپ نے عالم مکاشفہ میں دیکھا، مراقبہ نہیں مکاشفہ ہے، اپنی آنکھوں سے قبر کے حالات دیکھ رہے۔ اس کو علم کشف القبور کہا جاتا ہے۔ یہ بھی ایک خاص علم ہے جو اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو عطا فرماتا ہے، قبر کے حالات دیکھ لیا کرتے۔ آپ نے نظر ماری تو کیا دیکھا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی قبر میں جلال میں ہے، اور فرما رہے ای بدبختہ وقت مارا پریشان کردہ ان، ان بدبخت قوالوں نے ہمارے وقت کو برباد کر کے رکھا ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کی؟
یہی خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی عادت تھی، 3000 بار میرے سرکار کی بارگاہ میں درود و سلام پیش کرتے. شادی ہو گئی، پہلے دن درود پاک نہ پڑھ سکے، دوسرے دن بھی نہ پڑھ سکے، تیسرے دن بھی نہ پڑھ سکے. تیسرے دن رئیس نامی ایک شخص تھا جو آپ کا معتقد تھا اور آپ کا چاہنے والا تھا. رات کو سویا تو کیا دیکھتا ہے؟ سامنے گنبد نظر آ رہا ہے. اس گنبد کے اندر کوئی ہے، یہ نہیں جانتا کون ہے، لیکن ایک بندے کو دیکھا، وہ کبھی آتا ہے کبھی جاتا ہے، کبھی اس گنبد کے اندر چلا جاتا ہے اور کبھی واپس ہو جاتا ہے. اس نے پاس والے سے پوچھا یہ کون ہے جو آ جا رہا ہے؟ جواب ملا یہ حضور کے صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود ہے. میاں کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ تو واقعہ سنا رہے ہیں وہ بھی خواب کا. میں نے کہا خواب ہمارے یہاں ہر طرح کے خواب معتبر نہیں ہوتے، لیکن کچھ خواب ضرور معتبر ہوتے. سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ذهبت النبوۃ فلا نبوۃ بعدی الا المبشرات الرؤیا الصالحہ یراها الرجل او ترى له. فرمایا سنو، نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن میری امت کے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہے. اس جملے پہ سبحان اللہ بولنا چاہیے تھا، میں آپ کو یاد دلا رہا ہوں. سبحان اللہ سبحان بھائی سبحان اللہ بولیں گے تو سنت نور مصطفی پر بھی عمل ہو جائے گا. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے جب سرکار کے نور کو پیدا کیا، امام بخاری کے دادا استاد حضرت سرکار سیدنا شاہ عبد الرزاق کی کتاب ہے، اس کا نام ہے مصنفہ عبد الرزاق. اور فرماتے حضور علیہ السلام کے نور کو جب اللہ نے پیدا کیا اور درخت یقین پر رکھا تو میرے سرکار کا نور ایک دن نہیں 70,000 سال تک اللہ کی تسبیح پڑھتا رہا. سبحان اللہ. محبت سے بولو سبحان اللہ. حدیث کے الفاظ ہے کانا ذالک النور یسبح وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ. حضور کا نور اللہ کی تسبیح کر رہا تھا اور سرکار علیہ السلام کے نور کی تسبیح کو دیکھ کر فرشتے بھی تسبیح پڑھ رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان. بات سمجھ گئے؟ اب اس کو ذہن میں رکھیں، سنت نور مصطفی پر عمل ہوگا اور فرشتوں کی سنت پر بھی عمل ہو جائے گا. غور فرمائیے گا، حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود، یہ اندر جا رہے آ رہے، آخر مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس گنبد کے نیچے مدینے کے تاجدار تشریف فرما ہے. سبحان اللہ. سرکار نے کہا تھا نا کہ نبوت تو چلی گئی، نبی تو کوئی نہیں آئے گا، لیکن تمہارے لیے خوشخبریاں رہ گئی ہیں، گڈ نیوز رہ گئی ہے، مستعد جافزہ رہ گئے ہیں. اے میرے آقا یہ خوشخبریاں کیا ہے؟ فرمایا یہ سچے خواب ہے جو انسان اپنے لیے دیکھتا ہے یا کبھی دوسرا اس کے لیے دیکھ لیا کرتا ہے. آج خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے ان کا مرید معتقد دیکھ رہا ہے، نام رئیس ہے، رات کو سویا سامنے دیکھا عبداللہ ابن مسعود ہے، پوچھا اس کے اندر کون ہے؟ کہا مدینے کے تاجدار ہے. آخر آنے جانے کا مقصد کیا ہے؟ کہا مقصد یہ ہے کہ ان سے اجازت لینے جا رہے ہیں سرور کائنات سے. حضور اجازت دے رہے ہیں تو ملاقات کا شرف حاصل ہو رہا ہے. کہا میرے لیے بھی اجازت مانگ لی جائے. رئیس نے اپنا نام پیش کیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود گئے، میرے سرکار کی بارگاہ میں عرض کیا. حضور کا جملہ سنیے گا. آج ہم سوچتے یہ ہے 5 دن درود پاک پڑھ لے، چوتھے دن نیت یہ رہتی ہے اب تو سرکار کو خواب میں آنا چاہیے. ہمارے 5 دن کی عادت ہو گئی ہے، اس کے بعد ہمارا یہ تصور رہتا ہے. مگر رئیس سے میرے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں جب عبداللہ ابن مسعود نے اجازت مانگی تو سرکار نے کہا رئیس سے جا کر کے کہنا ابھی تیری آنکھیں ہمیں دیکھنے کے قابل نہیں ہوئی ہے، ابھی تیری آنکھیں اس لائق نہیں ہے کہ مدینے والے کا دیدار کرے. میں کہتا ہوں میرا نبی زندہ ہے، نبی دیدار کراتے ہیں، مگر شرط یہ ہے کہ نبی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ نبی کو دیکھنے کے لیے آنکھوں کا پاکیزہ ہونا بہت ضروری ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یا رسول اللہ زندہ باد زندہ باد. توجہ ہے. سبحان اللہ. مگر سرکار علیہ السلام نے کہا عبداللہ ابن مسعود رئیس سے جا کر کہو کہ میرے قطب الدین کو پیغام پہنچا دے.
کیا کہا؟ رئیس سے کہنا کہ قطب الدین سے کہے 3 دن سے تو نے اپنے نبی کی بارگاہ میں درود کیوں نہیں پیش کیا ہے؟ اگر نبی سنتے نہیں ہیں تو پھر پتہ کیسے چل رہا ہے؟ میں اتنی خاموشی میں اگر آپ کریں گے تو پھر میں ظاہر سی بات ہے، چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کو، جیسا آپ ماحول بنائیں گے ویسے میں بھی، ہے نا؟ اتنی خاموشی سے آپ سنیں گے تو پھر مزہ اتنا نہیں آئے گا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا کیوں رضا آج گلی سونی ہے، اٹھ میرے دھوم مچانے والے، یا نہ اٹھنا ہے نہ دھوم ہے۔ ایک خطیب، ایک شاعر تھے قریبی ملک کے، بڑا اچھا جملہ تھا، جب لوگ خاموش رہتے تھے تو کہتے تھے نہ داد ہے نہ امداد ہے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کے؟ ہاں، کم سے کم داد ہی دے دو، امداد نہیں ہے تو ہاں، لیکن داد دے دیں آپ، اسی میں کام ہو جائے گا۔ توجہ ہے؟ حضرت سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے لیے میرے سرکار نے پیغام بھجوایا، کہا رئیس سے جا کر کہو کہ میرے قطب الدین تک پیغام پہنچا دے، 3 دن ہو گئے تو نے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں درود نہیں پیش کیا ہے۔ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کی بارگاہ میں نماز فجر پڑھنے کے بعد سیدھا رخ کر دیا اور آنے کے بعد سلام عرض کیا اور کہنے لگا سرکار 3 دن سے آپ نے سرکار کی بارگاہ میں درود پیش نہیں کیا ہے۔ خواجہ قطب نے سر سے لے کر پیر تک نظر ماری، اس لیے کہ رات کی تنہائی میں درود میں پڑھتا ہوں، مدینے کے تاجدار پہ پڑھتا ہوں، پڑھنے والا جانتا ہے اور جو پڑھ رہا ہے، جس پر پڑھا جا رہا ہے وہ جانتا ہے، یا اس کا خالق و مالک جانتا ہے۔ تجھے کیسے پتا چلا کہ میں نے 3 دن سے سرکار کی بارگاہ میں درود نہیں پڑھا ہے؟ رئیس نے کہا یہ پیغام اسی کی بارگاہ سے آیا ہے جس کی بارگاہ میں آپ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ سرکار خواجہ قطب الدین بختیار کاکی نے پیغام سنا، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سچی عاشق کا مزاج بھی یہی ہوتا ہے۔ ارے وہ عاشق رسول نہیں جو 40 دن کا چلا کرا کے تمہیں سرکار کے درود سے دور کرتا ہو، سچا عاشق وہ ہے جو تمہیں یہ پیغام دیتا ہو کہ میری زبان میں کہو کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ سچا عاشق تو وہ ہے جو یہ کہتا ہے خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، اور آنکھ عطا کیجئے اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا تم پہ کروڑوں درود۔ سرور کائنات کا پیغام سنا تھا، خواجہ قطب الدین کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور کہتے ہیں رئیس گواہ ہو جا، جب تک قطب الدین زندہ رہے گا مدینے والے پہ درود و سلام پڑھتا رہے گا۔ اس لیے آپ بھی مزاج بنائیے، جب تک زندہ رہیں گے کسی کی نہیں سنیں گے۔ ہمیں سنانا تھا جس کو وہ سنا کے 100 سال پہلے چلا گیا، اب اسی کی سنتے ہیں، کسی اور کی نہیں سنتے، اور اس کی سنتے اس لیے ہے کہ اس نے ہمیں سب کی سنائی ہے۔ ہمیں قرآن کی سنائی، ہمیں صحابہ کی سنائی، مصطفیٰ کریم کی سنائی، حضرات اولیاء کی سنائی، اور پھر سب سے لاسٹ میں جا کر کہہ دیا ایک زندگی کا مزاج بناؤ، انہیں جانا انہیں مانا۔ ہم نے کہا یہ جاننے ماننے کا مزاج ملے گا کیسے؟ تو کہا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ سبحان اللہ، بات سمجھ سبحان کے؟ اللہ۔ ہاں، یہ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دیا، ابھی میری تقریر کا آغاز نہیں ہوا۔ اب میں جملے ابتدائی تمہیدی جملے عرض کرنے جا رہا ہوں۔ غور فرمائیے، ہم جس مقدس قرآن کے حافظ قرآن کی پاکیزہ تقریب میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ ایسی پاکیزہ کتاب ہے کہ جس کو اللہ نے ہر جہت سے کامل بنایا اور ہر اعتبار سے وہ ممتاز ہے۔ آپ دیکھیں پچھلی زمانے کی جو کتابیں تھی، کوئی عبرانی زبان میں تھی، کوئی سریانی زبان میں تھی، نام تو سمجھ میں آتا ہے لیکن زبان سمجھ میں نہیں آتی۔ ان کے جو واقعات قرآن میں بیان کیے گئے یا حدیث میں یا بزرگوں سے منقول ہے، وہی واقعات سمجھ میں آتے، لیکن نہ سریانی زبان جاننے والے ہیں نہ عبرانی زبان جاننے والے۔ مگر مقدس قرآن کی زبان کو دیکھے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کو زبان کے اعتبار سے اتنا ممتاز کر دیا ہے، میاں کبھی کبھی حیرت ہوتی
होती है, एक जुमला अर्ज कर देता हूँ। कुरान पाक में दो तरह की सूरतें हैं, एक सूरह मक्किया, दूसरी सूरह मदनिया। मुफस्सिरीन इकराम ने फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम के हिजरत फरमाने से पहले जो सूरतें नाजिल हुई है उनको मक्की सूरत कहा जाता है। आप दाएं बाएं न देखिए भाई, मेरी तरफ देखे आप, मैं आपको सुनाने आया हूं, आप सुनने आए हैं। ये काम वाले आते जाते रहेंगे, आप अपना काम क्यों खराब कर रहे हैं? गौर फरमाइएगा, कुरान पाक में दो तरह की सूरतें हैं, मदनी सूरतें, मक्की सूरतें। अल्लाह के रसूल के हिजरत करने से पहले जो सूरतें नाजिल हुई, चाहे किसी भी मकाम पर हो, चाहे ताइफ का मकाम हो या वादी तुवा, कोई सी भी जगह हो, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उतरने वाली उन सूरतों को मक्की कहा जाता है। और हुजूर के हिजरत करने के बाद जो सूरतें नाजिल हुई उनको मदनी सूरत कहा जाता है। मगर एक अंदाजा लगाइए, हिंदुस्तान की सारे सूबों को आप जायजा लीजिए। मिसाल के तौर पर मैं बरेली शरीफ से चला, यूपी से, जैसे ही मैंने यहाँ पर एंट्री की, फ्लाइट ने लैंड किया और जमीन पर उतरी, हम जैसे ही एयरपोर्ट के अंदर आए, अब देखा एक गैर मानूस जबान हमारे सामने बोली जा रही है। लोग बोल रहे हैं, शक्ल तो हमारी जैसी है, आंख कान हमारे जैसे है, कंट्री भी हमारी है, मुल्क भी हमारा है, इसी मुल्क में वो भी रहते हैं, मगर जबान समझ में नहीं आती, इसलिए कि वो उड़िया जबान बोल रहे हैं, कोई बंगला जबान बोल रहा है। हमने कहा हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सूबों को देखे, कश्मीर की पुश्तो आपके यूपी ना आ सकी है, यूपी की जबान, पूर्वी जबान अगर आप बंगाल में जाके बोले वहां वो लोग नहीं समझते, बंगाली जबान बिहार ना आ सकी है, बिहारी जबान छत्तीसगढ़ न जा सकी है, उड़ीसा की जबान उड़िया आपके आसपास के सूबों में न जा सकी है। मगर कुर्बान जाए अल्लाह के मुकद्दस कुरान पे, ये कुरान उतरा मक्का में था, ये कुरान उतरा मदीने में था, जबाने पाक है इसकी अरबी। ए कुरान पाक, एक बात तो बता, तेरी जबान तो सबसे डिफिकल्ट मानी जाती है, उसूल और ज़ाब्ते के एतबार से, कानून और कानून के एतबार से देखा जाए। ये अहले इल्म यहाँ तशरीफ फरमा है, हम नहव के कायदे पढ़ाते पढ़ाते थक जाते हैं और हम ये कहते, एक मिसाल दे रहा हूँ अहले इल्म के लिए है, लोग कहते अगर फाइल मुअन्नस हो तो ऐसी सूरत में उसका फेल भी मुअन्नस आएगा, कालत इमरातुन होगा, कालत निस्वतुन होगा। एक औरत ने कहा, चंद औरतों ने कहा, लेकिन कुरान कहता है वह काला निस्वतुन फिल मदीनत इमरातुल अजीजी तुराविदुहा। अब आपका ज़ाब्ता कहाँ चला गया? वहां यह कहना पड़ेगा, हम नहव को देखकर कुरान पाक का फैसला नहीं करते हैं, कुरान को देखकर नहव का फैसला किया करते हैं। मगर आप देखें तो सही, मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो ज़बान उतरी थी, अल्लाह ने उसको यह कमाल अता किया है। आप जहां कर्नाटक की सरजमीन पर खेतों में चले जाइए और पूछिए नाम क्या है, कहेगा अब्दुल रहमान। नमाज पढ़ते हो, कहेगा हाँ, तो कहा जरा कुरान सुनाओ, कोई सूरह इखलास पढ़ता नजर आएगा, कोई सूरह बकरा पढ़ता नजर आएगा। हम कहेंगे कुरान, ये तेरी जबान को पूरी दुनिया में कैसे आम कर दिया गया? सैटेलाइट तो आज की ईजाद है, इंटरनेट तो आज की ईजाद है, व्हाट्सएप तो आज की ईजाद है, इंस्टाग्राम तो आज चल रहा है, फेसबुक तो आज चल रही है। जवाब मिलेगा पूरी दुनिया के अंदर अगर कुरान और कुरान की जबान को आम किया है तो इंटरनेट व्हाट्सएप ले रही हाफिज कुरान के सीने में आम कर दिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अजमते कुरान, नारे रिसालत, मुफ्ती शहजाद आलम साहब क़िबला, नारे रिसालत। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम जब कुरान लेकर के आए, एक जिहद चैलेंज वाली भी है, वो भी अर्ज कर देता हूं। जब सरकार अलैहिस्सलाम कुरान लेकर आए तो चूंकि अरब के लोगों की जबान ही अरबी थी, और मियाँ एक बात याद रखें, ये मेरे सरकार अलैहिस्सलातु वसलाम की करम नवाजी है, हुजूर का सदका है। पिछली उम्मतों में जो ईमान वाले थे वो भी जन्नत में जाएंगे, मगर उनकी इब्रानी और सुरियानी और दीगर जबानें नहीं चलेंगी। ये जबान वो पाकीज़ा जबान है कि उनको भी जन्नत में जाके अरबी ही बोलना होगी।
کہاں سے محفوظ کیا اور کہاں تک میرے رب نے اس مقدس قرآن کی زبان کو پہنچا دیا ہے. خود میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں احب العرب لثلاث لانی عربی وکلام اللہ عربی ولسان اہل الجنت عربی. سرور کائنات نے ارشاد فرمایا عرب سے 3 وجہ سے پیار کرو. ایک تو اس لیے کہ قرآن عربی میں اترا ہے, دوسرا اس لیے کہ میرا اور تمہارا نبی عربی ہے, اور تیسرا اس لیے کہ سارے جنتیوں کی زبان بھی عربی ہے. میرے سرکار علیہ السلام نے جب قرآن پاک کو پیش کیا, کبھی یا ایھا المدثر کی تلاوت ہو رہی ہے, کہیں قرآن پاک کی آیت فصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, کہیں یا ایھا المزمل, کہیں سورہ لا اقسم بہذہ سورہ قیامہ کی تلاوت ہو رہی ہے. جب یہ قرآن پیش کیا اور میرے نبی نے کہا یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے, اب ایسی صورت میں عرب کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ یہ تو عربی زبان ہے اور محمد عربی بولو صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, کہا یہ بھی عرب میں پیدا ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے انہوں نے گڑھ لیا ہو. حالانکہ قرآن نے پہلے ہی کلیئر کر دیا ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ ولکن تصدیق الی آخر الآیہ. قرآن پاک نے کہا یہ جو میرا محبوب قرآن لے کر کے آیا ہے یہ محبوب کی طرف سے گڑا ہوا نہیں ہے کہ یہ اللہ کی وحی نہ ہو, بلکہ اللہ کی وحی ہے. لوگوں کو پھر ڈاؤٹ ہونے لگا, شک ہونے لگا. آپ جانتے ہیں دنیا کا ایک سسٹم ہے, اگر کوئی کتاب حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب نے لکھی تو کوئی رائٹر ایسا آتا ہے جو ان سے بھی بہتر کتاب لکھ سکتا ہے, اور تیسرا رائٹر آئے گا وہ ان سے بھی بہتر کتاب لکھ سکتا ہے. لیکن یاد رکھو یہ اللہ کا مقدس قرآن ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا, چونکہ یہ فرمان اس خالق و مالک کا ہے جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے, جس نے مصنف کو تصنیف کا ہنر عطا کیا ہے, جس نے خطیب کو بولنے کی زبان عطا کی ہے, جس نے حافظ کو حفظ قرآن کی قوت عطا فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے جب انہوں نے یہ کہا یہ تو تمہاری طرف سے گڑا ہوا ہے, قرآن پاک کی آیت اتری, اس کے بعد میرے نبی علیہ السلام سے کہا گیا محبوب ان کو چیلنج کر دو. پہلے قرآن نے کہا ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ وہ مقدس اور عظمت والی کتاب ہے, عظیم الشان کتاب ہے جس میں شک کرنا تو چھوڑیے, یہاں شک کی گنجائش اور یہ شک کی جگہ ہے ہی نہیں کہ جہاں شک کیا جائے. اب بھی اگر کوئی شک کر رہا ہے تو وہ اس کی دماغی بیماری تو ہو سکتی ہے, اللہ کے قرآن میں کوئی ڈاؤٹ اور شک نہیں ہو سکتا. دوسری بات اور سنیں, پھر قرآن نے کہا جو قرآن پاک پر شک کرتے ہیں, قرآن نے فرمایا فاتو بسورۃ من مثلی, اگر تمہیں قرآن پاک کے اندر شک ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا, اگر تمہیں اس قرآن میں شک ہے جو ہم نے اپنے محبوب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ اتاری ہے تو لاؤ اس جیسی کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ. فرمایا قرآن نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا, تم کر بھی نہیں سکتے, تم نہ کر سکتے ہو اور ہرگز ایسا نہیں کر سکتے کہ قرآن کی طرح کوئی صورت لے کر کے آ جاؤ. تو پھر ایسی صورت میں قرآن پاک کو مان کیوں نہیں لیتے, قرآن پاک کو دل سے تسلیم کیوں نہیں کر لیتے. قرآن پاک نے یہ بھی چیلنج کیا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ, قرآن پاک کو اگر قرآن جیسی کتاب لانے کے لیے دنیا کے سارے انسان اور سارے جنات بھی جمع ہو جائے پھر بھی قرآن پاک جیسی کوئی صورت, قرآن پاک جیسی کوئی کتاب نہیں لا سکتے ہیں. یہ سارے چیلنج میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو عطا فرما دیے. آج تک تاریخ گواہ ہے قرآن پاک کی ایک صورت تو چھوڑو, اس کی طرح ایک آیت لانے کی کسی میں ہمت نہیں ہے. ایک دن ابو جہل نے سوچا لاؤ میں لے کر کے آؤں گا قرآن پاک کی جو ہے علم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل, قرآن پاک ہے القاریۃ و ملقاریہ. قرآن نے اور بھی بہت سی صورتیں نازل فرمائی, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. ابو جہل نے کہا میں لے کر آؤں گا تو کتنا گھامڑ پنا اس نے دکھایا, کہنے لگا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل. سمجھ گیا؟ ترجمہ کروں؟ ابو جہل نے کہا میں بھی اسی کی طرح لا سکتا ہوں. ترجمہ کہتا ہے ہاتھی کیا ہے, ہاتھی تمہیں کیا پتا کیا ہے ہاتھی. ہم نے کہا ہم کو تیری بات نہیں بھاتی. تمہیں ہاتھی کو کون نہیں جانتا ہے, بچہ بھی جانتا ہے ایلیفینٹ کس کو کہا جاتا ہے, پورا نقشہ بیان کر دے گا. یہ قرآن کا مقابلہ کرنے کا نتیجہ تھا.
ذلیل و خوار ہو گئے مگر اللہ کے مقدس قرآن پاک کی طرح نہ لا سکے۔ دوسری بات اور سنیں، پچھلے زمانے کی جو کتابیں تھی ان کا عالم یہ تھا کہ وہ کتابیں ایک زمانے تک رہی، لوگوں نے ان میں تحریف کر دی، جو کتاب کے ماننے والے تھے انہوں نے ہی اس میں تحریف کر دی، اور کیا کہنے لگے، جہاں سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف والی آیتیں تھی توریت میں، انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا اور اپنے من کی بات کرنے لگے۔ سمجھے آپ؟ اپنے من کی بات کرنے لگے۔ قرآن نے کہا فویل للذین یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا، فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو کتاب توریت کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد یہ کہتے ہیں، یعنی توریت میں جہاں سرکار علیہ السلام کی تعریف و توصیف تھی، ایک جگہ قرآن نے کہا یحرفون الکلم عن مواضعہ، وہ اللہ کے کلمات کو ان کی جگہوں سے بدل دیا کرتے ہیں۔ مفسرین نے کہا یہ بدلنے سے مراد جہاں جہاں توریت میں سرور کائنات کی تعریف لکھی تھی انہوں نے جلن اور حسد میں اس کو ہٹا دیا اور اس کی جگہ دوسری باتیں لا کر کے داخل کر دی۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کتاب کو لکھ کر کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، مگر جب بات قرآن پاک کی آئی بہت زور لگایا گیا، عیسائیوں نے لگایا، یہودیوں نے لگایا، شکوک و شبہات پیدا کیے۔ 1400 سال بلکہ اب تو 1500 سال ہو گئے، قرآن پاک جیسا نازل ہوا تھا ویسے ہی الحمدللہ ہمارے سامنے موجود ہے، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم نے ہی قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی قرآن کی حفاظت کرنے والے۔ کسی نے کہا تھا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے۔ قرآن پاک کو مختلف جہتوں کے اعتبار سے آپ پڑھتے جائیں۔ مثال دے رہا ہوں، ایک کتاب لے کر آئے، حضرت علامہ مفتی اسلم صاحب اور قاری ذوالفقار صاحب کے سامنے لا کر کے رکھ دی، کہا لیجئے یہ کتاب ہے فلاں زبان میں۔ انہوں نے کہا مجھے زبان آتی نہیں تو میں اس کو پڑھوں گا کیسے؟ میں نے کہا اس کا مطلب دنیا کی کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو ایک کے لیے کارگر مفید دوسرے کے لیے غیر مفید، بولو تو صحیح یار۔ اسی طریقے سے کوئی کتاب حضرت علامہ مفتی صاحب قبلہ ہمارے لیے لے کر آئے، کہا دیجئے مولانا صاحب دا میسج کر کی ایک کتاب ہے۔ ہم نے کہا انگلش آتی نہیں تو میسج پڑھیں گے کیسے؟ یہ ایک مزاج ہے نا، کسی نابینا کے سامنے جا کر آپ نے کتاب رکھ دی اور کہا میاں اس کو پڑھیے، وہ کہے گا نظر آتا نہیں تو پڑھوں کیسے؟ کسی بہرے کے سامنے آپ نے جا کر انگلش گرامر سنانا شروع کر دیے، کہا یہ پاسٹ ٹینس ہے، یہ فیوچر ہے، یہ انڈیفینٹ ہے اور یہ از ایم آر کا یوز ہے، سمپل یہاں یہ ہیلپ ان ورک استعمال کیا جاتا ہے اور سمپل سینٹینسز بنائے جاتے ہیں، اس طرح کا مزاج آپ نے دیا۔ اس نے کہا بھائی میں بہرا ہوں سن نہیں سکتا، لیکن قربان جائے دنیا کی ساری کتابوں کا آپ سروے کیجیے، ہاں کوئی نہ کوئی کتاب کسی اعتبار سے مضر ہوگی، کسی اعتبار سے مفید ہوگی، کسی کے لیے فائدہ مند ہے، کسی کے لیے نقصان دہ ہے، مگر یہ مقدس قرآن پاک ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کمال دیا ہے، اگر اندھے کے سامنے لا کر رکھ دے وہ پڑھ نہیں سکتا لیکن ہاتھ تو لگا سکتا ہے باوضو ہو کر۔ اگر کوئی بہرا ہے سن نہیں سکتا ہے، آنکھ سے دیکھ تو سکتا ہے لا۔ اگر کوئی انسان پڑھ نہیں سکتا ہے، آنکھ سے اندھا بھی نہیں، کان سے بہرا بھی نہیں، لیکن عربی آتی نہیں ہے تو حافظ قرآن نے پڑھ کر سنانا شروع کر دیا۔ ہم نے کہا یہ وہ مقدس کتاب ہے جس کا پڑھنا بھی ثواب، جس کا دیکھنا بھی ثواب، جس کا چھونا بھی ثواب۔ اس کتاب کو اللہ نے ہر اعتبار سے برکت والا بنایا ہے، اگر کوئی دیکھتا ہے تو ثواب پا رہا ہے، چھوتا ہے تو ثواب پا رہا ہے، سنتا ہے تو ثواب پا رہا ہے، اور اگر کوئی پڑھ کر عمل کر لیتا ہے تو سرور کائنات ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا الکتاب ان اللہ
تعالی یزعو بہذل کتابی اقوامن، اللہ رب العزت کے پیارے حبیب نے فرمایا یہ وہ کتاب ہے قرآن پاک جس کی وجہ سے اللہ بہت سی قوموں کو ذلت کی طرف لے جاتا ہے، وَيَرْفَعُ بِهَذَا الْكِتَابِ آخَرِينَ، اور دوسروں کو اللہ تعالیٰ عزت و وقار عطا فرما دیا کرتا ہے۔ اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے حق و باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچنے والی کتاب بنایا ہے۔ کوئی اگر عمل کرتا ہے اور اس کے بیان کرتا عقیدوں پر پوری طریقے سے گامزن رہتا ہے، ٹکا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عزت عطا فرما دیا کرتا ہے، اور جو اس قرآن کے خلاف جاتا ہے وہ ذلت و رسوائی کے گہرے کنویں میں جا کر کے گر جایا کرتا ہے۔ اللہ کے مقدس قرآن کو آپ کسی بھی جہت سے دیکھیں، یہ قرآن پاک ہے، اس کو اگر کوئی بچہ یاد کر لیتا ہے حافظ قرآن بن جاتا ہے۔ اگر کسی نے ایک بھی آیت یاد نہیں کی، میرے سرکار نے فرمایا اس کا سینہ بالکل ویران گھر کی طرح ہے، اور اگر کسی نے یاد کر لیا حافظ قرآن بن گیا تو آؤ حضرت مولا کائنات کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ سیدی مولا کائنات شیر خدا علی المرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مات حامل القرآن اوحى اللہ تبارک و تعالی الى الارض اللہ تاکلی لحما فتقول ای ربی کیف آکل لحما وکلامک فی دوفی۔ توجہ، روایت کس کی پڑھی ہے؟ اونچا بولو، مولا کائنات کی، شیر خدا۔ میں نے ایک دعویٰ کیا تھا حویری میں کہ ہماری طرح اہل بیت کا کے فضائل اور ان کی شان بیان کرنے والا کوئی ہو تو بتاؤ۔ ہم رضوی اگر اہل بیت کی شان میں بیان نہیں کریں گے تو پھر کون کرے گا؟ میں اس دعوے کو تھوڑی دیر کے لیے دلیل سے ثابت کر دیتا ہوں تاکہ دعویٰ بلا دلیل نہ رہے، حالانکہ آؤں گا اسی طرف جس ٹریک سے آپ کو چھوڑا ہے میں نے، پھر پلٹا کے اسی طرف لے کر آؤں گا۔ بھی ایک حدیث میں نے سنن ترمذی شریف کی پڑھی ہے، میرے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ حدیث بھی علی ابن الحسین عن ابیہ عن جدہ علی ابن ابی طالب، سند دیکھیے گا، حضرت امام زین العابدین وہ روایت کرتے ہیں امام حسین سے، اور امام حسین روایت کرتے ہیں مولا کائنات سے۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن کیا کیا؟ اخذا بیدی حسن و حسین، میرے نبی علیہ السلام نے امام حسن امام حسین کا ہاتھ پکڑا، اور ہاتھ پکڑنے کے بعد فرمایا من احبنی و احب ہذین و اباہما و امہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا سنو، جو حسن سے پیار کرے، حسین سے پیار کرے، ان کے باپ مولا کائنات شیر خدا، کہا جو علی سے محبت رکھے، وَأُمَّهُمَا، اور جو ان کی والدہ سے عقیدت رکھے، فرمایا وہ میرے ساتھ قیامت کے دن میرے ہی ساتھ ہوگا۔ توجہ ہے؟ میں تھوڑا سا پلٹا کے آپ کو لے کر چل رہا ہوں۔ آج بھی میرے سرکار نے ہاتھ پکڑا ہے، اور ایک وقت وہ تھا کہ جب نجران کا وفد آیا تھا حضور سے مباہلہ کرنے۔ ہاں بیٹا سر اوپر اٹھاؤ، ہاں وہ کام گھر بھی کر سکتے ہو جو یہاں کر رہے ہو، لیکن جو یہاں کر رہے ہو مجھ کو سن کر وہ گھر پہ نہیں ہو پائے گا۔ غور فرمانا، ایک بات عرض کر رہا ہوں، کچھ نقطے کی بات میں آپ کے گوش گزار کر رہا ہوں۔ میرے سرکار نے امام حسن و حسین کا ہاتھ پکڑا ہے، لیکن جب مباہلے کی کیفیت تھی، شیخ مومن شبلندی کی کتاب نور الابصار فی مناقب آل بیت المختار کے اندر روایت جو ذکر کی گئی ہے کہ جب میرے سرکار علیہ السلام کے پاس نجران کے عیسائی آئے اور کہا عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو؟ پورا واقعہ آپ نے بارہا محرم شریف کے مہینے میں سنا ہوگا، بس میں پوائنٹ پر آ رہا ہوں۔ سرور کائنات جب مباہلے کے لیے لے کر کے جا رہے تھے، میرے نبی نے حضرت فاطمہ الزہرا کو اپنے پیچھے کیا، ان کے بعد
बाद हजरत अली है। बिल्कुल कैफियत देखे, आगे मेरे सरकार है, पीछे सैयदाए कायनात है, उनके पीछे मौलाए कायनात है। एक हाथ में मेरे सरकार ने इमाम हसन का हाथ पकड़ा है और दूसरे हाथ से इमाम हुसैन को गोद में ले लिया है। भाई कैफियत समझ में आई हो तो बोलो यार, सुभान अल्लाह तो बोलो कम से कम। कितना पाकीज़ा मंजर आपके सामने पेश कर रहा हूं। आगे मेरे सरकार, पीछे सैयदाए कायनात, उनके पीछे मौलाए कायनात। आखिर सैयदाए कायनात को बीच में क्यों रखा? इसलिए रखा ताकि कयामत तक के मुसलमान समझ ले बच्चियों के चेहरे दिखाए नहीं जाते, उनका पर्दा करके उनको छुपाया जाता है। हमारे तिजोरियों के खजाने से ज्यादा अहमियत हमारे बच्चियों की इज्जत है, इसको बचा करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। पर्दा बहुत जरूरी है। सरवरे कायनात ने बीच में लिया, हजरत अली पीछे है, इमाम हुसैन को गोद में उठाया है, इमाम हसन का हाथ पकड़ा है। आप आम तौर से इस चीज को देखते होंगे, रोजमर्रा की जिंदगी बयान कर रहा हूं। हजरत मौलाना ने बच्चे का हाथ पकड़ा, चल तुझे चॉकलेट दिलवा के लाऊंगा, लेकर गए। बच्चों की आदत होती है चलते हुए कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे कभी पीछे, कभी वो अपने बाप के आगे आ जाता है, कभी कोई चीज नजर आई, उंगली पकड़ा है, पीछे की तरफ चला गया। लेकिन जिस बच्चे को गोद में उठाया है, जो फरन पर है, वो कभी पीछे नहीं जाता। आप गोद में बच्चा उठाएंगे, वो फरन पर रहेगा, सामने रहेगा। मैंने कहा मेरे नबी आज ईसाइयों के मुकाबले में मुबाहले के लिए तशरीफ लेकर के जा रहे हैं। कोई दावत तो नहीं थी, बल्कि दुश्मनों के सामने मुकाबला होना था। आखिर इस छोटी सी उम्र में इमाम हुसैन को गोद में उठाया क्यों था? मैं कहूंगा ये तरबियत थी करबला की। सरवरे कायनात में गोद में उठाकर अपने बेटे को अमली तौर पर तरबियत दे रहे हैं और गोया ये कह रहे हैं हुसैन आज तेरा नाना मुकाबले में है, कल करबला में दुश्मन तेरे मुकाबले में होंगे। इस तरह मैं डटा हुआ हूं, इसी तरह तुझे भी डटा रहना है। लेकिन एक बात याद रख, तू मुकाबला करते रहना। जिस तरह तेरे नबी ने तुझे आज उठाया है, कल करबला में भी आके तुझे उठा लेगा। और उठाया कि नहीं उठाया? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास की रिवायत, सरकार अलैहिस्सलाम को देखा, फरमाया ला अज़ालु अल्तक़ितुहु मुनज़िल यौम। रिवायत छोड़ दी मैंने, बस आखिरी जो मुस्तदल है वो जुमला ले रहा हूं। सरकार अलैहिस्सलाम के हाथ में खून शीशी थी जिसके अंदर खून था। मेरे सरकार ने पूछा क्या है? हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने पूछा क्या है? हुजूर ने फरमाया हाज़ा दमुल हुसैनी व अस्हाबी। फरमाया आज पूरा दिन हो गया है, हुसैन और उसके साथियों के खून को करबला में जमा कर रहा हूं। हमारे मोहतरम को कहते इधर देखे भाई, उधर कोई खास चीज नहीं है, थोड़ी देर के लिए किबला खिताबत बना लीजिए, इंशाअल्लाह फिर आपको मजा आएगा। गौर फरमाइएगा, मेरे नबी अलैहिस्सलाम वहां तशरीफ फरमा है। कोई पूछे तो सही, इमाम आली मकाम 72 की कुर्बानी, बहुत बड़ा जख्म, 72 जख्म जिस्म पे बर्दाश्त कर लिए, उससे बड़ा जख्म। उसके बाद गर्दन भी आपकी कट गई, आपके जिस्म नाज से आपके सरे अक़दस को जुदा कर दिया गया। आपको दर्द हुआ कि नहीं? कहेंगे मेरे नबी की हदीस तुझे मालूम नहीं, अला इन्न शहीदा ला यजिदु अलमल कत्ली इल्ला कमा यजिदु अहदुकुम अलमल करसा। फरमाया शहीद जब शहादत का जाम पी रहा होता है, उसको इतना ही दर्द होता है जैसे तुम्हारे हमारे चींटी के काटने पे दर्द हुआ करता है। और दूसरा जवाब मिलेगा, अरे तकलीफ उसको हो जिसके सामने गुंबदे खजरा के मकी तशरीफ फरमाना हो। उस्तादे ज़मान अल्लामा हसन ने यही तो कहा था, बाग़े जन्नत छोड़कर आए हैं महबूबे खुदा, ऐसे है किस्मत तुम्हारी कुश्तगाने अहले में। अच्छा एक और नुक्ता सुने, हुजूर ने इधर उठाया इमाम हुसैन को, एक हाथ में हाथ लिया इमाम हसन का। मैंने बताया था बच्चा जो हाथ में होता है कभी छुपता है, कभी दिखता है, कभी नहीं दिखता। हजरत सरकार सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ने एक किताब लिखी सिर्रुश शहादतैन। सिर का माना राज और शहादत का माना जानते ही अल्लाह की राह में कुर्बानी पेश करना, और शहादतैन का मतलब 2 शहादतों का राज। हमने कहा मेरे सरकार ने इमाम हसन को उठाया, इमाम हुसैन को हाथ में हाथ लिया और जमाने को बता दिया देखो अपने नबी की शान, एक तरफ छुपी हुई शहादत चल रही है और एक तरफ करबला में
छपी हुई शहादत चल रही है। बात समझ गए? और आगे बढ़े। हजरत इमाम आली मकाम रदी अल्लाह ताला अन्हु, इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, इन दोनों की शान आपको मालूम है और सरकार अलैहिस्सलाम का नसब पाक भी आपको मालूम है। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम की बारगाह में एक जुमला पहुंचा था। लोगों ने कहा कि कुरान कहता है फला अंसाब बैनहुम, कयामत के दिन नसब तो काम नहीं आएंगे। हुजूर अलैहिस्सलाम मेंबर पे तशरीफ फरमा हुए, फरमाया मा बालो अक़वामिन यज़अमूना अल्ला क़राबती ला तनफ़उ यौमल क़ियामा। क्या हो गया लोगों को जो कहते हैं कि मेरा रिश्ता कयामत के दिन फायदा नहीं देगा? फरमाया सुनो, कुल्लो नसबिन व सबबिन तनक़तिउ यौमल क़ियामा इल्ला नसबी व सबबी फ़इन्नहा मौसूलतुन फ़िद दुनिया वल आखिरा। सरवरे कायनात ने फरमाया सुनो, सारे रिश्ते खत्म हो जाएंगे। भाई अज़मत कुरान ही बयान कर रहा हूं। कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, ये कुरान ही की आयत है। मैं जिस आयत पर भी गुफ्तगू करूंगा अज़मत कुरान ही को बयान करूंगा। तवज्जो फरमाइएगा। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां 3 बेटे। आज के दौर के कुछ राफजी मिजाज रखने वाले ये कहते हैं सरकार की एक ही बेटी थी। मैंने कहा उन बदबख्तों से एक बात पूछो, कुरान कहता है या अय्युहन नबिय्यु कुल्ल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीन। महबूब कहिए आप अपनी बीवियों से और अपनी बेटियों से, बनात ये बिंत का सिंगुलर नहीं है, ये प्लूरल है। बिंत सिंगुलर है और बनात प्लूरल है। अगर सरकार की एक बेटी थी तो कुरान ने बनात क्यों कहा? हमने कहा ये वो कह रहा है जिसने सरकार को 3 बेटियां अता फरमाई है। ये खालिक कायनात कह रहा है, रब्बे कदीर कह रहा है। सरकार की 4 बेटियां और हुजूर के 3 बेटे, हजरत कासिम का विसाल, हजरत अब्दुल्ला का विसाल, हजरत इब्राहिम का विसाल। अब जब कुफारे कुरैश तक और दीगर हजरात तक जब हजरत कासिम का विसाल हुआ तो अबू लहब एन कंपनी कहने लगी बुतिरा मोहम्मदुन अलयौमा, माअज़ल्लाह कहा आज तो नबी की नस्ल खत्म हो गई, अब इनका सिलसिला कैसे चलेगा? हजरत इब्राहिम का विसाल हुआ तब भी कहा इनका सिलसिला नसब कैसे चलेगा? चूंकि वो उसूल जानते थे आदम से लेकर ताई दम सबका सिलसिला लड़कों से चल रहा है। हुजूर के 3 बेटे थे, तीनों का विसाल हो गया, लेकिन उन बदबख्तों को यह पता नहीं था जो अल्लाह इब्राहिम को लेने पर कादिर है वो मुस्तफा की नस्ल को बाकी रखने पर भी कादिर है। हजरत अल्लामा मुफ्ती असलम साहब बराबर में बैठे हैं, पूछने लगे मौलाना एक बात तो बताओ, नस्ल चलती तो नरीना औलाद से है, तो हुजूर के 3 बेटे थे, तीनों का विसाल, तो जहन में सवाल तो आएगा। मैंने कहा इमाम तबरानी को उठाकर देखे, मौजम कबीर में उन्होंने फरमाया सुनो, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं इन्नल्लाह तआला जाला ज़ुर्रियता कुल्ले नबिय्यिन फी सुल्बी व इन्नल्लाह तआला जाला ज़ुर्रियती फी सुल्बी अली इब्न अबी तालिब। फरमाया अल्लाह ने हर नबी की औलाद को उसी की पुश्त में रखा है, मगर मेरे और तुम्हारे नबी की औलाद को अल्लाह ताला ने अली की पुश्त में रख दिया है। बात समझ गए? और कौन मौला कायनात? जिक्र कर रहा हूं मैं, हालांकि और भी इस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन मुझे जाना उसी तरफ है। कौन मौला कायनात? ये वो मौला कायनात हैं जिनको मदरसे में तालीम दी गई और उस मदरसे का नाम भी मदरसा सुफ़ा था, जिसमें इल्म देने वाले मदीने के ताजदार थे। मौला कायनात रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के बहुत से इल्मी और फिक़ी वाक़ियात हैं। मैं उन वाक़ियात की तरफ नहीं जाता, एक शान की तरफ जाता हूं, चूंकि मैंने कहा था रिजवी अगर अहले बैत की शान बयान नहीं करेंगे तो कौन करेगा। आपने आम तौर से एक जुमला सुना होगा, फतेह मक्का के मौके पर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरत अली को कांधे पर उठाया था। यहां तक तो सब जानते हैं ना, कांधे पर उठाया था, लेकिन उसके बाद हजरत अली से पूछो हजरत अली क्या कहते हैं, इन्नहु ला युखय्यलु इलैया अन्नी लौ
रईतु ललिलतु उफ़क़ समा, ये जुमला भी मैंने आला हजरत इमाम अहले सुन्नत की किताब मतलउल कमरैन फी इबानत सबक़तिल उमरैन से उठाया। आला हजरत ने बड़े पाकीज़ा जुमला लिखे। आपने फरमाया जरा सोचो तो सही, आज अली किस नबी के कांधों और शानों पर सवार है? उस अली, उस नबी करीम के शानों पर सवार है जिसका कदम अल्लाह रब्बुल इज्जत के करम से मेराज की रात अर्श आजम से ऊपर गया था, और अर्श आजम पर जिनका कदम नाज रहा था। बरेली का इमाम कहने लगा ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। हजरत अली आप बताओ आपको क्या एहसास हुआ? कहने लगे जब मैं हुजूर के कांधों पर था ना, तो मुझे यह ख्याल गुजरता था, जो अहले इल्म है ना अरबी मतन सुनकर समझ गए ये कुछ बोल रहे हैं, तो आपको भी बोल देना चाहिए कि कोई अच्छी ही बात सुना रहा। तर्जमा सुन लीजिए। मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा मुझे यह ख्याल गुजरता था अगर मैं चाहूं तो हुजूर के कांधों पर सवार होते हुए आसमान का किनारा छू लूं। बोलो तो सही, अली का माना बुलंद होता है, मेरे मुस्तफा ने कितना बुलंद कर दिया है। अच्छा एक बात मैं यहां और अर्ज करूं, हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु से अर्ज करें सरकार जब अबू बकर सिद्दीक अकबर खलीफा बनाए जा रहे थे तो आपने बड़ी आसानी से उनकी बैत को कबूल कर लिया। क्या बात है। मिसाल के तौर पर हमारे हजरत बैठे हैं, नाम अंसर है, अरे भाई आपको तो फिर कुछ कहना ही नहीं है। हाँ, ये तो इसमें तफजील है पूरी। नुसरत और मदद का पूरा आला दर्जा है ना। अब देखते हैं कितने मजाहिर नजर आएंगे। तो जो है ना कारी साहब किबला, माशाअल्लाह कारी साहब तो साथ देंगे ना, जबरदस्ती इनसे साथ लेना पड़ेगा चूंकि है मेरे डिस्ट्रिक्ट के। मैं अगर से खानदानी एतबार से आबाई वतन बरेली शरीफ है, लेकिन मेरी पैदाइश डिस्ट्रिक्ट रामपुर की है और रामपुर का असली नाम मुस्तफाबाद है। समझ में आई बात आपकी? हाँ, गौर फरमाइए। हमने कहा कारी साहब किबला ने किसी की तारीफ की, मौलाना अंसर साहब के बारे में कहा यार बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा आपने सुना है या देखा भी है? कहने लगे मैंने सुना है। तो मैंने कहा आपके पास सिर्फ थ्योरी है। इन्होंने कहा कि नहीं अच्छा पढ़ाते हैं। मैंने कहा आपने देखा? बोले मैं खुद दरसगाह में बैठ करके सुनता हूं, बच्चों को बड़ा अच्छा पढ़ाते। अब इनकी गवाही इनके लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों है ना भाई। इन्होंने कहा प्रैक्टिकली तौर पे मैंने मुशाहदा किया, देखा है कि ये अच्छा पढ़ा रहे हैं और लोगों से भी सुना है ये अच्छा पढ़ाते हैं। हमने कहा जरा आमदम बरसरे मतलब हजरत मौलाए कायनात सरकार के कांधों पर सवार है। मेरे मौला की नजर कहां कहां तक पहुंच रही थी। अरे मियां जब गौसे आजम कहे इन्न शुहदा वल अश्किया रसूना अलैया वाइनी फिल्लाहिल महफूज, फरमाया अच्छी और बुरी तकदीर वाले गौसे आदम कह रहे हैं अच्छी और बुरी तकदीर वाले मेरी बारगाह में पेश किए जाते हैं और मेरी नजर लौहे महफूज पर जमी होती है। आला हजरत कहने लगे मेरी तकदीर बुरी हो तो भली कर दे, कहे महव इस बात के दफ्तर पे करोड़ा तेरा। हमने कहा सैयदी गौसे पाक लगते जिगर है मौलाए कायनात के, जब ये बगदाद में बैठकर लौहे महफूज को देख सकते हैं तो मेरे मौलाए कायनात तो आज सरकार के कांधे पर है। और आसान जुमला कर देता हूं कि जब ख्वाजा उस्मान हारूनी अपनी दो उंगलियों के बीच से ख्वाजा मोइनुद्दीन को सारे तबकात का मुशाहदा करा सकते हैं तो मेरे नबी अली को कांधों पर बिठाकर सारा कुछ सिखा क्यों नहीं सकते? अब सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कांधे पर मौलाए कायनात सवार है। हमने कहा अली की नजर पड़ी लौहे महफूज पर, लौहे महफूज का सारा मंजर देख लिया। अब अली की बारगाह से जवाब मिलेगा अबू बकर की खिलाफत पर मैं मोहर क्यों ना लगाता और हाथ पर बैत क्यों नहीं करता? मैंने सरकार से थ्योरी भी सीखी थी और फतेह मक्का के दिन मैंने प्रैक्टिकली तौर पर देख लिया था कि सरकार के बाद पहला खलीफा अबू बकर बनने वाले हैं।
बहुत सी शानें इन बुजुर्गों की बयान की जा सकती है, लेकिन मैंने एक दावा किया था, उसको हल्के फुल्के अंदाज में, अपने अंदाज में, टूटे फूटे अंदाज में, वरना इन आकाओं की बारगाह में हम क्या पेश कर सकते हैं। सुनिए, मदरसे के अंदर इल्म सिखाया जाता है। इल्म में 3 लफ्ज है और इन 3 अल्फाज को, 3 हरफों को अल्लाह ताला ने कितना बड़ा मकाम दिया। ध्यान से मेरी बात को सुना। मगर इल्म भी 2 तरह का है, एक इल्म नाफे होता है, एक इल्म मुदिर होता है। हजरत सरकार ख्वाजा हसन बसरी ने फरमाया, एक इल्म वो है जो तेरे लिए है और एक इल्म वो है जो तेरे ऊपर है। लका व अलैक, क्या मतलब? लामे इंतिफाई है। लामे इंतिफा का मतलब फायदा पहुंचाने वाला लाम। इसका मतलब यह है कि एक इल्म तुझे फायदा देगा और दूसरा इल्म वो है जिसको जान करके तू अमल नहीं करेगा तो तेरे खिलाफ हुज्जत और दलील बन जाएगी। और दूसरी बात और सुने, आज हमारे यहां मिजाज बन गया है, अरे भाई बच्चे को कुरान ही तो पढ़ना है, किसी के भी मकतब में दाखिल कर दो, किसी के मदरसे में दाखिल कर दो। हमने कहा सुनो, मुस्लिम शरीफ, बुखारी शरीफ के बाद दूसरे दर्जे की हदीस की किताब है, उसमें अल्लाह हजरत मोहम्मद इब्ने सिरीन की रिवायत को हजरत इमाम मुस्लिम ने जिक्र किया है, रिवायत किया है। वह फरमाते इन्ना हज़ल इल्मा दीन फंजुरू अम्मन ताखुज़ूना दीनकुम। क्या कहा? फरमाया ये दीन इल्म का, ये इल्म दीन का इल्म है, लिहाजा ले किससे रहे हो इस पर गौर करना बहुत जरूरी है। हर एक से दीन नहीं सीखा जाता है। अभी एयरपोर्ट से आ रहा था, मगरिब की नमाज का वक्त हो गया, नमाज पढ़ने के लिए हम गए तो एक मस्जिद के करीब से गुजर हुआ, हमने देखा ये 2 बंदियों की मस्जिद है, बाहर एक बैनर लगा हुआ देखा, उस बैनर में एक तरफ लिखा था, कट लगा हुआ था कादियानियों के नाम से, एक तरफ कट लगा था शकील इब्ने हनीफ के नाम से, कोई मुद्दाई इमाम मेहदी है उसके नाम से, और कादियानों पे भी कट लगा था। मैंने कहा देखे तो सही, गुड़ खाए गुलगुलों से परहेज करे। अबे अगर ये कादियानी तुम्हें गवारा नहीं है तो हम तुम्हें कादियानों ही की तरह समझते हैं। इसलिए कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी ने अगर नबुव्वत का दावा किया था, उससे पूछा गया तेरे पास दलील क्या है, तो उसने देवबंदी इमाम, देवबंदी पेशवा, दारुल उलूम देवबंद का बानी कासिम नानोतवी की किताब तहजीरुल नास को पेश किया और कहा इन्होंने खुद लिखा है नबी के बाद भी कोई नबी आ सकता है, तो जाहिर सी बात है उसने दावे नबुव्वत किया, सारा रास्ता तुमने हमवार किया है। जिस तरह हमें कादियानी पसंद नहीं है, इसी तरह हमें देवबंदी भी तस्लीम नहीं है। समझ में आई बात आपके? सरकार अलैहिस्सलाम के सच्चे आशिक मोहम्मद इब्ने सिरीन, मालूम है ये कितने बड़े बुजुर्ग थे, हदीसों के जरिए ख्वाबों की ताबीर बयान करते थे। अच्छा, ताबीरें मौसम के एतबार से भी बदलती हैं। एक शख्स आया इनके पास, कहने लगा सरकार रात मैंने देखा है कि मुझे 70 दीनार मिले। आपने फरमाया जाओ 70 मिलेंगे। अब दूसरा मौसम आया तो फिर वही ख्वाब देखा, फरमाया जाओ 70 कोड़े लगेंगे। बात समझ गया ना? तो ख्वाबों की ताबीर सही लोगों से मालूम करना चाहिए। बुजुर्गों ने यह भी फरमाया कभी उल्टे सीधे से मालूम करेगा तो वही ताबीर मुकद्दर हो जाती। इसलिए पढ़े लिखे लोगों के पास जाएं। बुरे ख्वाब हो तो अगर बुरा ख्वाब नजर आया है तो फिर बाईं तरफ थूथू कर दे और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ ले, ला हौला वला कुव्वता पढ़ ले। अच्छा ख्वाब नजर आया है तो अच्छे लोगों से बयान करे ताकि उसका सिलसिला जारी रहे। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था कि मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के चहीते आशिक मोहम्मद इब्ने सिरीन ने कहा ये इल्म दीन का इल्म है, किससे ले रहे हो इस पर भी गौर करना पड़ेगा। हमने कहा अगर सुन्नी इदारा है, वहां से बच्चे अगर मदरसे से तालीम हासिल कर रहे हैं तो उनका मकाम व मर्तबा देखिएगा। सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबी नाम हजरत आदि और ये बेटे हैं हातिम ताई के। हातिम ताई तो मुसलमान ना हो सका, लेकिन उसके बेटे सरकार सैयदना आदि रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल कर लिया था। एक दिन मेरे हुजूर की बारगाह में आए और इनके साथ हजरत ज़ैद इब्ने मुहल्हल भी थे, जिनको मेरे सरकार ने ज़ैदुल खैर का लक़ब दिया था। ये दोनों आकर कहते हैं इन्ना कौमुल नसीदु बिहादिहिल किलाबिल मुअल्लमा, सरकार हम शिकारी लोग हैं, हमारे पास शिकारी कुत्ते हुआ करते हैं, उससे हम शिकार करते हैं। हुजूर मसला बता दीजिए। कुरान अल्लाह के रसूल ने फरमाया इज़ा अरसलता किलाबकल मुअल्लमता व ज़करता इस्मल्लाहि अलैहिन्ना फकुल मिम्मा अमसकना अलैक व इन कतलना, फरमाया अगर तुमने शिकारी कुत्तों को
बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ के भेजा, उन्होंने तुम्हारे लिए शिकार किया, उसमें से खुद कुछ नहीं खाया, अगरचे तुम्हारे पहुंचने से पहले उन्होंने शिकार को क्या कर डाला, मार डाला, खत्म कर दिया, लेकिन उसकी कोई बोटी नोची नहीं, बस शिकार करके तुम्हें दे दिया। सरवरे कायनात फरमाते हैं खा सकते हो, लेकिन एक कैद लगाई, व इल्लम युखालितुहुन्ना किलाबुन गैरुहा, मगर अगर उन कुत्तों के साथ कुछ ऐसे कुत्ते भी मिल गए जो तुम्हारे शिकारी कुत्ते नहीं थे। अब सरकार कहते हैं खा नहीं सकते। हजरत की तवज्जो चाहता हूं, या एक नुक्ता बयान करना चाहता हूं, इल्म वालों का मकाम और मर्तबा क्या है। अब हम मुफ्ती साहब किबला से पूछेंगे, हजरत कुत्ता वो भी कुत्ता ये भी, एक ही क्वालिटी, एक ही जिन्स, एक ही नौ, एक ही फसल, लेकिन क्या मामला है, शिकारी कुत्ते हैं खाना जायज। शिकार अगर शिकारी कुत्तों ने किया तो वो शिकार खाना, लेकिन अगर मोहल्ले के कुत्ते मिल गए, मोहल्ले के कुत्ते मिल गए तो फिर खाना जायज नहीं। क्लाइमेट बड़ा चेंज हो जाता है। हमारे यहां तो माशाअल्लाह इतनी ठंड पड़ रही है, गवर्नमेंट को वहां की छुट्टी करना पड़ी। यहां आकर के देखो तो मौसम बिल्कुल अलग थलग है। लगता अगली साल फिर इस मौसम में यही रहना पड़ेगा, है ना। तवज्जो फरमाए, गौर फरमाइएगा, चूंकि अगली साल मुझे लगता है कि रमजान शरीफ करीब आ जाएगा। बिल्कुल गौर फरमाए आप। हमने कहा मुफ्ती साहब किबला ये भी कुत्ते वो भी कुत्ते, अगर शिकारी कुत्तों ने शिकार किया तो खाना जायज, और गैर शिकारी कुत्ते अगर आ गए तो हुजूर फरमा रहे अब नहीं खा सकते। वजह क्या है, उलमा इकराम जवाब देंगे। फर्क यह है कि उधर शिकार का इल्म था, यहां शिकार का इल्म नहीं है। हमने कहा यार देखे तो सही, अगर इल्म कुत्ते को मिल जाता है तो शरीयत ने कानून बदल दिया है, शरीयत ने उसूल बदल दिया है। यहां शिकार खाना जायज है, वहां शिकार खाना जायज नहीं है। पता चला ये इल्म की बरकत है। अगर ये इल्म किसी कुत्ते को मिल जाए, वो कुत्ता दूसरे कुत्तों से मुमताज हो जाया करता है, तो अगर ये इल्म किसी इंसान को मिले, वो इंसान दूसरे से मुमताज क्यों नहीं होगा। कुरान ने कहा यरफइल्लाहुल लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना उतुल इल्म दरजात। अल्लाह फरमाता है अल्लाह ईमान वालों को बुलंद करता है, लेकिन ईमान वालों में जिनको इल्म की दौलत मिल गई है, अल्लाह उनको दर्जों बुलंद फरमा दिया गया। समझ में आई बात आपके। बात चली थी हाफिज कुरान की, चूंकि हाफिज कुरान भी यहां बने, अल्लाह करे सब मुत्तकी परहेजगार रहे, मसलक के वफादार रहे। और एक नसीहत करूंगा कि कुरान भूलना मत। अल्लाह ने यह दौलत दे दी है तो फिर याद रखो। फकीह अबुल्लैस समरकंदी अपनी किताब तंबीहुल गाफिलीन में तहरीर फरमाते हैं कि जो हाफिज कुरान हिफ्ज करने के बाद भूल जाता है, मुख्तलिफ रिवायतें, एक में यह है कि अंधा उठाया जाएगा, चूंकि अल्लाह की दी हुई नेमत को उसने उस पर शुक्र अदा नहीं किया। समझ में आई बात आपकी। यह अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। हिफ्ज कुरान कोई मामूली चीज नहीं है। हदीस सुनिएगा, अगर सच्चा पक्का हाफिज कुरान है, बामल है, मुत्तकी है, नमाज की पाबंदी करता है, मौक़िफ़े ताजुश शरिया पे अमल करता है, तो याद रखिएगा मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं जब हाफिज कुरान का इंतकाल होता है, उसको लोग कफन पहनाते हैं, दूल्हा बनाते हैं, कब्र में रख देते हैं। जैसे ही कब्र में उसकी लाश पहुंचती है, अल्लाह जमीन से कहता है इसके जिस्म को खाना नहीं। अगर थोड़ी सी इजाजत हो, कारी साहब किबला तशरीफ फरमा है। कुइया ताल महाबर का नाम सुना होगा आपने, आप तो जानते ही हैं। ताल महाबर एक जगह है, अभी जा रहा हूं वहां तकरीर के लिए। जब ताल महाबर का एक बच्चा था जिसका नाम था रईस खां, वो मेरा साथी था। मैं और वो हिफ्ज करते थे साथ साथ में, बस उस्ताद चेंज थे, मदरसा एक ही था। बड़े चंचल मिजाज का था। नाबालिगी में हाफिज कुरान बन गया, और जिस साल बालिग हुआ उस साल उसकी तबीयत बिगड़ी। रुद्रपुर की सरजमीन एक उत्तराखंड में उन दिनों एक बुखार चल रहा था जिससे पूरा दिमाग पानी बन जाता था। उसका दिमाग पूरा पानी बन गया, इंतकाल हो गया। मैं उसके जनाजे में खुद गया हूं। 11 महीने के बाद एक बंदा उसकी कब्र पर हाजिरी देने गया। सुभान अल्लाह। हदीस का मैंने जुमला सुना दिया यार, कम से कम आपको समझ में तो आ जाए कि हदीस से वाक़ये की, वाक़ये से हदीस की तस्दीक हो रही है।
मलफूज शरीफ में पूरा वाकया है, लेकिन उस तरफ जाना नहीं चाहता मैं, इसी तरफ मैं जा रहा हूं। तकरीबन 11 महीने गुजर गए। उस बच्चे का आलम यह था, बच्चा हाफिज कुरान बन गया था। अल्लाह ने कुरान के हिफ्ज की दौलत उसको अता फरमाई थी। आखिर इंतकाल हुआ। इंतकाल में आज भी वो लम्हे मुझे याद है कि जब हम गए थे, उसकी माँ रो रो कर कह रही थी, बेटा अब तो तेरे साथ पढ़ने वाले बच्चे भी आ गए हैं, कम से कम चारपाई से उतर के इनका इस्तकबाल तो कर ले। उसके वालिद उसका घर भी कब्रिस्तान के बिल्कुल सामने था। बाप बड़ा गरीब और निहायत गरीब था। अल्लाह का फजलो करम देखिएगा, जिस बंदे के साथ ये वाकया हुआ, उसने बराह रास्त मुझे बताया कि हम उसकी कब्र पर गए, हाजिरी दी, क्या देखा कि उसकी कब्र से खुशबू आ रही थी। सुभान अल्लाह, खुशबू आ रही थी और बारिश की वजह से थोड़ा सा हिस्सा हट गया था। किसी की नजर पड़ी तो क्या देखा, 11 महीना गुजरने के बाद भी उसके जिस्म का कफन महफूज है, उसका जिस्म भी महफूज है। सरवरे कायनात फरमाते हैं, जब हाफिज़े कुरान का इंतकाल होता है, जमीन से अल्लाह कहता है इसके जिस्म को खाना नहीं। जमीन कहती है ई रब्बी कैफा आकुलु लहमा व कलामुका फी जौफी, ए अल्लाह मैं इसके जिस्म को कैसे खा सकती हूं जबकि इसके सीने में तेरा मुकद्दस कुरान मौजूद है। अगर इल्मी बातें समझने का मिजाज है तो एक बात कह दूं, जब कब्र में हाफिज़े कुरान का जिस्म महफूज है तो मदीने में साहिबे कुरान का जिस्म महफूज क्यों नहीं होगा? समझ गए? यही हाफिज़े कुरान जब कयामत के दिन खुदा की बारगाह में आएगा तो हदीस पाक है, यजीउ हामिलुल कुरान फयक़ूलुल कुरान। खुदा की बारगाह में हाफिज़े कुरान आएगा तो कुरान अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, हल्लिहु, ये अल्लाह इसको कुछ पहना दे। बोलो ना मोहब्बत। फतवा रज़विया शरीफ में है कि 50,000 साल का वो दिन होगा, दिन की दराजगी की वजह से और आसमान और सूरज हमारे सरों पर होगा तो जिस्म पर जो पसीना आएगा, तपिश और दिन की दराजगी की वजह से जिस्मों का कफन गल सड़ के गिर जाएगा। लेकिन कैफियत देखे यहां, इधर हाफिज़े कुरान ऐसी आप एक सूरत समझिएगा, यहां सब लोगों सिर्फ एक ही कुर्ता पहनकर बैठे हो और सख्त सर्दी पड़ रही हो, ऐसे में एक बंदा आए, शानदार जैकेट पहनकर आए, जर्सी पहनकर आए, तो हर वो सब में मुमताज नजर आएगा कि नहीं आएगा? लोग कहेंगे सबके पास एक ही लिबास है, इसके पास इतने इतने लिबास है कि सर्दी इस पर असर नहीं कर रही है। बिला तशबीह और तमसील उस मंजर को जहन में रखे और फिर सुने, कुरान पाक अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेगा, हल्ली हूं, हे मेरे मौला इसको कुछ पहना दे, इसको कुछ पहना दे। अल्लाह ताला कुरान की गुजारिश को रद्द नहीं फरमाएगा। फयल बसो ताजल करामा, उसके सर पर इज्जत वकार का ताज आ जाएगा। जरा मोहब्बत से बोल जाए सुभान अल्लाह। उसके बाद कुरान पाक के हाफिज के लिए अल्लाह की बारगाह में फिर कुरान अर्ज करेगा, कहेगा मौला जिदहू अलई, इस पर कुछ और इजाफा फरमा दे। हदीस पाक के अल्फाज है, फयल बसो हुल्लतल करामा, अल्लाह ताला उसको इज्जत वकार का जोड़ा अता फरमा देगा। अब ताज भी मिल गया है, जोड़ा भी पहन लिया है। उसके बाद कुरान अर्ज करेगा, इरदान हूं, ये अल्लाह इससे राजी भी हो जा। अरे अल्लाह किसी से राजी हो जाए? कुरान कहता है वरिदवानुम मिनल्लाहि अकबर, अल्लाह की खुशनुदी सबसे बड़ी चीज है। जोड़ा मिल गया, ताज भी मिल गया। उसके बाद कुरान कह रहा है इरदान, अल्लाह इससे राजी हो जा। फयरदानहु, अल्लाह उससे राजी भी हो जाएगा। और जब अल्लाह राजी होगा तो अब सुनो कमाल की बात, सुम्मा कील, फिर उससे कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? इकरा वरत्तिल वर्का। बोलो यार, कहा गया अब कुरान पढ़ और ठहर ठहर कर पढ़, और एक आयत पढ़ एक दर्जा चढ़। फकी अबुल्लैस समरकंदी इसी किताब में फरमाते हैं, कुरान में जितनी आयतें हैं जन्नत में उतने ही दर्जे हैं। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मूल चुकाए अपना हाथ ही खाली।
रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उससे कहा जाएगा कुरान की आयत पढ़ और ठहर ठहर कर आराम आराम से पढ़, एक दर्जा चढ़ जा। अब कोई ऐसा खुशनसीब भी होगा जो सारा कुरान पढ़ देगा और जहां तक वो पहुंचेगा अल्लाह उसको वो सारे मकामात और दर्जे अता फरमा देगा। जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, और प्यार से बोलो सुभान अल्लाह। हमने कहा ये हाफिजे कुरान है, लेकिन मदरसा सिर्फ हाफिजे कुरान ही नहीं देता, मदरसा आलिमे दीन भी देता है। जामिया बिलाल को आप देख रहे हैं, जो आपकी इस सरजमीन में मरकज़े अहले सुन्नत है, दीन का बड़ा काम कर रहा है। अल्लाह उस इदारे को सलामत रखे, उसके मुआविरीन और उसके जिम्मेदारों को, असातिज़ा और सारे तलबा के इल्म में, उमर में, अमल में बरकतें अता फरमाए। गौर फरमाइएगा, आलिमे दीन अता फरमाता है। आपके आज इस वक्त एक सवाल करूं मैं, सबसे बड़ा सखी कौन है? लोग अलग अलग राय देंगे। जिसने जामिया बिलाल को 5 करोड़ दे दिए, लोग कहेंगे सबसे बड़ा सखी वो है। कोई कहेगा जिसने पूरा जामिया बिलाल बना दिया, लोग कहेंगे सबसे बड़ा सखी वो है। कोई कहेगा जिसने साल भर जामिया बिलाल के असातिज़ा और तलबा का खर्च उठाया, सबसे बड़ा सखी वो है। मगर मैं कहूंगा नहीं नहीं, आओ सरकार अलैहिस्सलाम से पूछते हैं। मिशकात शरीफ की हदीस पाक है, ये मदरसा ही है जो आलिम दे रहा है, और आलिम की शान को समझिएगा। एक दिन मेरे सहाबा, सरकार के सहाबा तशरीफ फरमा है, हुजूर अलैहिस्सलाम भी मौजूद है। मेरे नबी ने फरमाया, हल तदरूना मन अजवदो जूदा। ए सहाबा, तुम्हें मालूम है सबसे ज्यादा जूदो करम कौन करता है? सहाबा ने अर्ज किया, अल्लाह व रसूलुहु आलम। ये जुमला बोला इसलिए था, उनको लगा कि कुरान उतर रहा है, हो सकता है कोई वही नई नाजिल हो गई हो, इसलिए जवाब नहीं दिया। सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अल्लाहु अजवदो जूदा। फरमाया सबसे ज्यादा जूदो करम करने वाली जात मेरे रब की है। उसके बाद फरमाया, सुम्मा अना अजवदो बनी आदमा। फरमाया उसके बाद औलादे आदम में सबसे ज्यादा सखावत करने वाला तुम्हारा और मेरा नबी है। अब तीसरा जुमला सुनिएगा, सुम्मा अजवदो मिन बादी मन आलिमा इल्मन फनशरहु याती यौमल क़ियामति कल जमाल। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सवाल किया, सबसे बड़ा सखावत करने वाला कौन? लोग कहने लग, सरकार अलैहिस्सलाम के सहाबा ने जब जवाब नहीं दिया, हुजूर ने फरमाया सबसे ज्यादा जूदो करम करने वाला खुदा है, उसके बाद सखावत करने वाला तुम्हारा मुस्तफा है, उसके बाद फरमाया वो बंदा है जो इल्म हासिल करके उस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दिया करता है, उस इल्म को आम कर दिया करता है। इसी से मिलती जुलती एक हदीस है, सरवरे कायनात के सहाबी इरशाद फरमाते हैं, एक दिन मेरे नबी मस्जिद नबवी शरीफ में तशरीफ लाए, सहाबा इकराम को देखा, फैदा हुआ बिहलकतैन, तो 2 गिरोहों के अंदर सहाबा बटे हुए थे। कुछ वो थे, उनमें से इहदाहुमा यक़रऊन अल-कुरान व यदउल्लाह तबारक व तआला, कुछ कुरान पढ़ के अल्लाह से दुआएं कर रहे थे, वल उखरा यतअल्लमूना व युअल्लिमूना, दूसरे कुरान सीख और सिखा रहे थे। भाई ध्यान देना मेरी बात पर, सरवरे कायनात ने फरमाया कुल्लुन अला खैर, ये जमात भी भलाई पर है, ये जमात भी भलाई पर है। उसके बाद मेरे सरकार ने फरमाया, अम्मा इहदाहुमा यक़रऊन अल-कुरान व यदऊन अल्लाह, इनमें एक जमात कुरान पढ़ रही है, अल्लाह से दुआ कर रही है, फ़इन शाअ अता व इन शाअ मना। फरमाया अगर अल्लाह चाहे तो अता कर दे, अल्लाह चाहे तो मना कर दे। लेकिन उसके बाद फरमाया व अम्मल उखरा, रही दूसरी जमात, यतअल्लमूना व युअल्लिमूना, फरमाया ये कुरान सीख भी रहे हैं और दूसरों को सिखा भी रहे हैं। उसके बाद फजलसा माहुम, सरकार नफिल पढ़ने वाले, इबादत करने वालों के पास नहीं बैठे, बल्कि कुरान सीखने सिखाने वालों के पास बैठ जाते हैं, और उसके बाद अपना मकाम और मर्तबा बताते हैं। कहते इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, अल्लाह ने दुनिया में मुझे उस्ताद बना करके भेजा है। समझ गया? सरकार अलैहिस्सलाम ने हिजरत के बाद सबसे बड़ा काम और सबसे पहला काम मदीने शरीफ में किया था, मदरसा सुफ़ा कायम किया। उस मदरसा सुफ़ा की तफसील में जाऊं तो वक्त बहुत हो जाए। और आज जो सिस्टम है ना मदरसों के अंदर, कुछ लोग चंदा देते हैं, कुछ लोग मदरसे में पढ़ने आते हैं। उस जमाने में मदरसा सुफ़ा में 70 सहाबा इकराम थे, और वो कहीं नहीं जाते थे,
कुरान ने कहा फ़ुक़राइल्लज़ीना उसरू फ़ी सबीलिल्लाहि ला यस्ततिऊना दरबन फ़िल अर्दि यहसबुहुमुल जाहिलु अग़निया मिनत तअफ़्फ़ुफ़ तारिफ़ुहुम बिसीमाहुम ला यसअलूना अन्नासा इल्हाफ़ा वमा तुनफ़िक़ू मिन खैरिन फ़इन्नल्लाहा बिही अलीम। इसकी तफसीर पढ़ लीजिए आप, तीसरा पारा है। सरकार अलैहिस्सलाम ने ज़कात का खास हिस्सा उनके लिए रखा था। फरमाया और ये सदकात उन गरीब सहाबा के लिए है कि जो अल्लाह की राह में रोक लिए गए। कहां रोके गए? अल्लाह की राह में रोक लिए गए। फरमाया वो जमीन में तिजारत के लिए सफर करते नहीं है, लेकिन खुददार इतने कि देखने वाला इनको मालदार समझता है। एक एक जुमले पे जरा गौर फरमाइएगा। मैं वहां की तदबीक यहां कर रहा हूं। मदरसों में ज़कात का पैसा आता है, बिलाशुबा आता है। मदरसे में कम तनख्वाहों पर उलमा 24 घंटा लगाते हैं, ठीक। तिजारत नहीं करते, उनकी सिर्फ एक ही तिजारत है, एक ही बिजनेस है, एक ही मकसद है कि बस सरकार का दीन फैल जाए। उसके बाद लोग उनका लिबास देखकर कि यार क्या शानदार जुब्बा पहने हुए हैं, लोग कहते हैं यार ये तो बड़े मालदार लोग हैं। और मैं एक जुमला बोलता हूं, उलमा को अल्लाह ने यह कमाल अता किया है, इंडिया नहीं कहीं का भी सफर कर ले। मैं अपना जाती तजर्बा बता रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब तक 3 से 4 कंट्री में जा चुका मैं तकरीर के लिए, लेकिन निकलने से पहले न कभी मैं लिहाफ और बिस्तर बांधता हूं, समझ गया, न मेरे साथ स्टोव रहता है, न आटा चावल लेके चलता हूं, मैं तो पार्ले भी नहीं रखता साथ में, समझ गए आप, कुछ नहीं। बस यहां से उतरे, वहां पहुंचे, अल्लाह खाने का भी इंतजाम कर देता है, रहने का भी इंतजाम कर देता है। अल्लाह ने उलमा का रिस्क इतना फैला दिया है, और फैलाया इसमें भी अल्लाह के इस काम में भी हिकमत है, इसलिए कि जहां आलिम जाता है वहां इल्म की बरकतें भी जाया करती है। समझे? बहरहाल सरकार अलैहिस्सलाम के जमाने में जो मदरसा सुफ़ा था, तो कुछ सहाबा इकराम के बाग थे खजूर के, वो खजूर के पूरी शाखें और गुच्छे तोड़कर मस्जिद नबवी शरीफ में लटका देते। क्यों? ताकि मदरसे में रहने वाले, मदरसा सुफ़ा में 70 सहाबा इकराम उनसे कहते, जब भूख लगे खजूर खा लेना, पानी पी लेना। और यहां तो अब ऐसा नहीं है, पहले जमाने में जागीर चलती थी, आपकी भी कोई जागीर रही होगी। हाँ, अब तो नहीं, खत्म हो गई, आपका जमाना तो बहुत पुराना है माशाअल्लाह। उस जमाने में जागीर समझते थे, घरों से खाना आता था, असातिज़ा भी खाते थे, मैंने भी खाई है, हिफ्ज़ के दरमियान जब दौर करता था, है ना, तो जागीर चलती थी, घरों पे खाना लगता था, उसको कहते थे जागीर। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सहाबा का मिजाज, कुछ सहाबा इकराम तिजारत करने दिन में चले जाते और 70 सहाबा सरकार की बारगाह में रहते। हुजूर पर कोई आयत उतरती, उस आयत को याद कर लेते, सरकार कोई हदीस फरमाते, उस हदीस को याद कर लेते। लेकिन कितना गैप नहीं था, कितना इस्तिहाद था उनमें जो मदरसा चला रहे थे और उनमें जो मदरसे के अंदर इल्म हासिल कर रहे थे। आज के दौर में ये चीज खत्म हो गई है, और गैपिंग की वजह से आज हमारी कौम तक सही पैगाम नहीं पहुंच पाता है। गुमराही की एक वजह भी ये बनती चली जा रही है। उन सहाबा की जिंदगी देखो जो दिन में तिजारत करने जाते और अपनी खजूर के खोशे और गुच्छे वहां लटका के चले जाते। रात को जब आते थे ना, नमाज़े मगरिब पढ़ी, सरकार से कहते, आका आज मेरे साथ एक सहाबी को भेज दे, आज वो मेरे साथ खाना खाएगा। सुभान अल्लाह बोलिए भाई। सरकार कहते, एक नहीं 2 को लेकर जाओ, इसलिए कि 1 का खाना 2 को काफी है, 2 का खाना 3 को काफी है। ये हदीस उसी जमाने में आई थी जब सहाबा इकराम को लोग अपने घरों पर, उन सहाबा को, असहाबे सुफ़ा को अपने घरों पर लेकर जाते थे। सरकार कहते थे, ले जाओ, 1 के खाने में अल्लाह 2 की बरकत देगा, 2 के खाने में 3 की बरकत देगा। ये सहाबा इकराम खाना खिलाते और फिर रात को आकर उन असहाबे सुफ़ा के पास बैठते और कहते, अब बताओ मेरे नबी ने दिन में कौन सी हदीस इरशाद फरमाई है, कुरान की कौन सी आयत उतरी है। उनको इल्म हासिल करने का मकसद होता और ये सरकार अलैहिस्सलाम का दीन उन तक पहुंचाया करते थे। वो मदरसा सुफ़ा में खर्च कर करके दीन सीख रहे थे और ये दीन सिखा सिखा के अपनी आखिरत को बना रहे थे। इस तरीके से इस्लाम हम तक पहुंचा है।
इसलिए मदरसों को मामूली मत समझिएगा और मदरसों में बच्चों को भेजा करें। मालदार लोग खास तौर से भेजें, मदरसों का सिस्टम सही करें। अगर आज आपने तनख्वाहें अच्छी कर दी ना मदरसों में, तो जो बच्चा कहता है कि मैं ये फला क्लास करूंगा, फला, सबका मकसद होता है जरिया माश। मदरसों की सही तनख्वाहें हो जाए, अच्छा सिस्टम हो जाए, लोग अपने बच्चों को आलिम बनाएंगे, कहेंगे इसमें दीन भी मिल रहा है और हमारे बच्चों के अखराजात भी पूरे हो रहे हैं। बहुत सारे अफराद सिर्फ इसलिए आलिम नहीं बनाते मगर उनकी फिक्र गलत है। अल्लाह ताला रिस्क का इंतजाम करता है, कोई आलिम भूखा नहीं रहता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सब खुशहाल जिंदगी काटते हैं। आप मदरसों को देखें तो सही, वो सिस्टम था वहां मदरसों को ज़कात, मदरसे के जो हजराते असहाबे सुफ़ा थे उनको अल्लाह ताला ने खास सदकात देने का हुक्म दे दिया था और इस तरीके से मदरसे चला करते थे। सरवरे कायनात ने मदरसा कायम किया और हिकमत बताऊं, ये मदरसा ही है जो तुम्हें अब्दुल कादिर जिलानी अता फरमा रहा है, ये मदरसा है जो तुम्हें मुईनुद्दीन चिश्ती अजमेरी अता फरमा रहा है, ये मदरसा है जो तुम्हें अल्लामा फजल हक खैराबादी अता कर रहा है। फाइनल जुमला बोल रहा हूं, ये मदरसा है। अगर 1947 में मुल्क बचाने की बात आती है तो फतवा जिहाद देकर मदरसे का तालिब इल्म हिंदुस्तान बचा लेता है, और जब 14वीं सदी में बात आती है तो ईमान अकीदे की हिफाजत करने वाला मदरसे से पढ़ा हुआ इमाम अहमद रजा खान अकीदा बचा लिया करता है। बात समझ गए आप? एक आलिमे दीन का मकाम समझे। मेरे सरकार ने फरमाया उसके बाद सबसे बड़ा अगर सखी कोई है तो वो है जिसने इल्म हासिल करके इल्म को आम कर दिया। अगर इस तनाजुर में आला हजरत को देखा जाए तो हम अगर इल्म फैला रहे हैं, हमें अगर सखी का नाम दिया जाएगा तो ये सारी सखावत सदका है आला हजरत की सखावत की। और एक बात और सुने, किसी सुन्नी आलिम से अगर कुछ गलती हो जाए तो बहुत सारों का मिजाज इन मौलवियों से हम बेहतर है। ये जो आज नाम निहाद मौलाई बने हैं ना, ये बेचारे खबतुल हवास है, भटक रहे हैं। अभी इनको सही तौर पे रास्ता मालूम नहीं है चलना किधर है। हमने कहा चलना है तो सिर्फ आला हजरत का रास्ता पकड़ लो, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाओ। कहते हम आलिम से बेहतर हैं। आला हजरत की किताब है मकाले उरफा बेएजाज शरअ व उलमा। इसकी एक बात मैं आप तक अर्ज कर रहा हूं। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने इस किताब के अंदर पहले कुरान पाक की सूरह फातिर 22वें पारी की आयत को लिखा। अल्लाह फरमाता है सुम्मा औरसनल किताब अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी व मिनहुम मुक़्तसिद व मिनहुम साबिक़ुन बिल खैराति बिइज़्निल्लाह ज़ालिका हुवल फ़ज़्लुल कबीर। ध्यान से सुनना, चूंकि खतीब के साथ मुदर्रिस भी होना तो कभी तदरीसी अंदाज भी आ जाएगा, इसलिए आपको मानूस रहना है हर अंदाज से। कुरान ने क्या कहा? फिर हमने किताब का इल्म दिया अपने उन बंदों को जिनको हमने चुन लिया। इस लफ्ज पर गौर करना, हमने किताब का इल्म किसको दिया? उनको दिया जिनको हमने चुन लिया। अब जिनको अल्लाह ने चुना था फिर उनकी 3 किस्में कुरान ने बयान की। फमिनहुम ज़ालिमुन लिनफ़्सी, मगर इस शर्त पर तफसील बयान करूंगा कि उलमा इकराम इस आयत करीमा और फजीलत को सुनकर के मिजाज में तब्दीली ना लाए, बल्कि ये सोचे कि जब हम गुनाहगार हैं, मैं भी गुनाहगार, अपने गुनाहों को याद करके मैं बोल रहा हूं कि जब गुनाहों पर मदीने वाली की इतनी अताएं हैं तो नेकियां अगर कर लेंगे, मुत्तकी बन जाएंगे तो कितनी अताएं मिलेंगी। कुरान पाक ने कहा उलमा की पहली जमात वो है जो गुनाह करके अपनी जानों पे जुल्म करती है, दूसरी जमात वो है जो गुनाहों के साथ नेकियां भी करती है, तीसरी जमात वो है जो सिर्फ गुनाह नहीं करती नेकियों पर नेकी करती है। कोई बायजीद बुस्तामी बनता है, कोई जुनैद बगदादी बनता है, कोई अब्दुल कादिर जिलानी बनता है, कोई मुईनुद्दीन चिश्ती बनता है, कोई मुफ्ती आजम बनता है, कोई ताजुश शरिया बनता है। फरमाया ये अल्लाह का बड़ा फजल है। मगर मेरे इमाम ने इस आयत करीमा को जिक्र करने
करने के बाद फिर कुरान पाक की तफसीर हदीस से जिक्र की। सरवरे कायनात फरमाते हैं साबिकुना साबिकुन व मुख्तसिदुना लाजिन व ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लहु। फरमाया सुनो मेरी उम्मत के वो उलमा जो नेकियों पर नेकियां कर रहे हैं, वो तो पहले नंबर पर है, वो तो सबकत ले जाने वाले हैं, लेकिन वो उलमा कि जो नेकियां और गुनाह दोनों करते हैं वो भी नजात पाने वाले हैं। व ज़ालिमुना मग़फ़ूरुन लहु, और फरमाया मेरी उम्मत के वो उलमा कि जो गुनाह करके जानों पे जुल्म करते हैं, अल्लाह ताला इनको भी बख्शिश का परवाना अता फरमा देगा। आला हजरत ने एक जुमला इरशाद फरमाया, कहा ये देखो कि जो गुनाहगार हैं उनको भी अल्लाह ने इस्तफ़ैना में शामिल किया है। क्या कहा? हमने किताब का इल्म उनको दिया जिनको हमने चुन लिया। तो जिनको चुना था फिर उनकी 3 किस्में बताई। बात समझ गए आप? ये मेरे इमाम का जुमला है। और आला हजरत ने फरमाया आलिम रब्बानी वो होता है जो लोगों की अकीदे की इस्लाह करे, सीधा रास्ता लोगों को बताए। बात समझ गए आप? लेकिन उलमा की भी जिम्मेदारियां होती है और इंशाअल्लाह उन जिम्मेदारियों पर जिस तरीके से अमल कर रहे हैं करते रहेंगे। अब बात को आगे बढ़ा रहा हूं, एक आलिम दीन से फायदा कितना होता है। चलो एक मिसाल देकर बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाता हूं। आपने हजरत सरकार अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हुमा का नाम सुना होगा। चूंकि मौका हजरत मौलाए कायनात रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान मैंने बयान की है, मैं यौम विलादत की बात नहीं कर रहा हूं, मैं शान की बात कर रहा हूं। हजरत अली की शान बयान करने के लिए हमें किसी दिन की तखसीस की जरूरत नहीं है। हम जब चाहेंगे तब अहले बैत का जिक्र करेंगे और कहेंगे क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। तवज्जो। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास के पास हजरत मौलाए कायनात के पास आए और आने के बाद का ये खारजी फिरका पैदा हुआ है, आप कहें तो मैं इनसे जाकर के बात कर लूं। हजरत मौलाए कायनात ने फरमाया जाओ। महफूज शरीफ में आला हजरत ने इसको पूरे वाकये को तफसील के साथ जिक्र किया और एक जुमला भी जिक्र किया है, लेकिन इंशाअल्लाह किसी और मौके पर यह कल बयान करूंगा। गौर फरमाइए, आपने फरमाया हजरत अली मौलाए कायनात ने कि जाओ बात करो। 10,000 खारजी है, अकेला मेरा मुस्तफा का शेर है। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा तुम्हारा मसला क्या है, तुम अली पे कुफ्र का फतवा लगाते हो, क्या मसला है? कहा जंगे सिफीन का मसला है। उन्होंने अबू मूसा अशरी को अपना हकम फैसल बना लिया और अम्र इब्ने आस को जो है अमीर मुआविया ने बना लिया। तो कहा फिर का कुरान कहता है निल हुक्म इल्ला लिल्लाह, फैसला तो सिर्फ अल्लाह का है। मदरसे और भी हैं, दीगर फिरके वाले भी हैं, लेकिन ये आधा पढ़ के आधा ही बताते हैं। जमाते अहले सुन्नत के मदरसे वो आपको पूरा दीन सिखाते हैं। गौर फरमाए, हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा फिर, कहा कुरान पाक के खिलाफ हो गया इसलिए हम इन पर फतवा लगा रहे हैं। अब वो खारजी थे, खारजी वो होते हैं जो अहले बैत को भी नहीं मानते, सहाबा को भी नहीं मानते। हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा मैं कुरान की एक आयत पढ़ रहा हूं, 5वें पारी की आयत करीमा, फबासु हकमम मिन अहलिही व हकमम मिन अहलिहा इन युरीदा इस्लाहन युवफ़्फ़िक़ू बैनहुमा। कुरान पाक ने जिक्र फरमाया कि अगर मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, मुफ्ती साहब किबला, मियां बीवी में झगड़ा हो जाए, आप ही के दारुल कज़ा की बात है। कुरान ने कहा अगर मियां बीवी में झगड़ा हो जाए और फैसला कराना है तो फरमाया एक फैसल भेजो औरत की तरफ से, एक भेजो मर्द की तरफ से। कहा तू फैसले पर फतवा लगा रहा है, यहां तो अल्लाह फैसल बनाने का हुक्म दे रहा है। अब देखें, खारजियों ने दीन सिखाना चाहा था, उनके सरों पर भी टोपियां या अमामे होंगे, वो भी रातों में नमाजें पढ़ा करते थे, तहज्जुद अदा किया करते थे, लेकिन दीन कैसा सिखा रहे हैं आज के दौर के खारजी दयाबना वहाबिया, ये भी आधी बातें बताएंगे। कुरान की जो आयतें काफिरों के बारे में उतरी है, बुत परस्तों के बारे में उतरी है, उन आयतों को हम पर चस्पा करते हैं, कहते हैं देखो ये मजारों पे जाके सजदा कर रहे हैं, माअज़ अल्लाह। इस तरीके से खारजियों की रविश पर यह कायम है। उन्होंने भी क्या कहा, कहा कुरान कहता है फैसला तो सिर्फ अल्लाह
अल्लाह का है। इन्होंने उल्टा कर दिया और कुरान की एक आयत को लिया, दूसरी आयत को छोड़ दिया। हमने कहा यकीनन जाती तौर पर फैसला मेरे रब का है, लेकिन अल्लाह ने जिनको फैसला बनाने की इजाजत दी है उनका फैसला भी फैसला ही माना जाएगा। ये इख्तियार मेरे रब ने अता कुरान पाक की आयत करीमा सुनाई, उसके बाद सही मफहूम और सही मतलब कुरान का बयान किया। जैसे ही कुरान का सही मफहूम बयान किया, पार खारजियों ने कहा अपने अब्बास देर न करो, अली के पास लेकर चलो, हम कलमा पढ़ के मुसलमान होने वाले हैं। आपने देखा एक आलिम दीन के इल्म ने अल्लाह के फजल करम से 5000 का अकीदा बचा लिया। बात समझ गए? तारीखें पढ़ते चले जाएं, सरकार मुफ्ती आजम को देखें, शुद्धि तहरीक को देखें। 4.5 लाख लोगों ने इस्लाम में फिर दोबारा एंट्री की थी। ये एक आलिम का इल्म था। बात समझे कि नहीं समझे आप? इसलिए उलमा की जमात से जुड़े रहे। उगदू आलिमन औ मुतअल्लिमन औ मुस्तमिअन औ मुहिब्बन वला तकुनिल खामिसा फतहलिक। सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं बनना है तो आलिम बनो। सुभान अल्लाह तो बोल दो भाई। अब गैर आलिम अगर इसलिए सुभान अल्लाह नहीं बोल रहा है कि मैं नहीं हूं तो अजीब मामला है। क्या बनना है? देखिए ऑप्शन 4 है, 5वां नहीं है। बनना है तो आलिम बनो। अगर आलिम नहीं बन सकते तो आलिम की बारगाह में बैठकर इल्म हासिल करने वाले बनो। और अगर यह भी नहीं बन सकते तो फरमाया आलिम जो बात कह रहा है उसको ध्यान से सुनने वाले बनो। और फरमाया अगर यह भी नहीं कर सकते तो आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। देखिए उलमा से जो मोहब्बत करेगा, उनके करीब आएगा तो उसको चाहे अनचाहे दीन मिल ही जाएगा। समझ में आई बात आपके? बरेली शरीफ के ताल्लुक से एक आलिम ने कहा था, भले बरेली शरीफ में सिर्फ गलियों में कोई घूमता रहे तब भी उसको इल्म की बरकत मिल जाती है। मुझे अजीब सा लगा, मुजमला यार ये कौन सी बात है। लेकिन मैं जब बरेली शरीफ में पढ़ा, उस वक्त उला में पहली जमात में था, जब बरेली शरीफ आया, अब रह रहा हूं 12-13 साल से मुस्तकिल बरेली शरीफ में, तब मुझे समझ में आया कि यार वाकईतन यहाँ की गलियों में इल्म मिलता है। चूंकि आए दिन 10-10, 5-5, 15, 20-20, 40-40 उलमा आते रहते हैं और उलमा से बात होगी तो वो दीन की बात बताएंगी आप भाई। तो मशाइन का दौर भी तो गुजरा है, चलते फिरते इल्म सिखाया करते थे। तो आला हजरत की गली में मशाइन का मंजर नजर आ जाता है। अल्लाह का बहुत बड़ा फजलो करम है। आप उर्से रज़वी देख ले, उलमा और तलबा की सबसे ज्यादा तादाद होती है। लोग इधर कोई झुंझुना बेच रहा है, कोई कुछ बेच रहा है, लेकिन आप तो जाएंगे उर्से रज़वी में तो चारों तरफ किताबें ही नजर आएंगी, या शीरीनी या आवामें नजर आएंगी, या टोपियां नजर आएंगी। बहरहाल मैं अर्ज ये कर रहा था, सरवरे कायनात ने फरमाया बनना है तो आलिम बनो, वरना आलिम की बारगाह में इल्म हासिल करने वाले बनो। और अगर ऐसा नहीं कर सकते तो बात को ध्यान से सुनने वाले बनो, या फिर उसके बाद आलिम से मोहब्बत करने वाले बनो। वला तकुनिल खामिसा फताली, 5वें मत बनना वरना तबाह हो जाओगे। इसी तनाजुर में अगर आप देखें सरकार सैयदना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को, पहले आपने इल्म हासिल किया है, उलूम ज़ाहिरी में महारत हासिल की है, और उसके बाद मेरे सरकार की बारगाह से इजाजत मिलने के बाद हिंदुस्तान का नक्शा सरकार ने दिखा दिया था। फिर आप आए थे हिंदुस्तान की सरजमीन पर, और एक जुमला अर्ज कर देता हूं, वहां भी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नहीं है, रावजी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का नहीं है। वजह यह है कि ये मज़ारात से चिढ़ते हैं और ख्वाजा पाक की तारीख को सुने। मेरा ख्वाजा जब चला था मदीने शरीफ से और आया था दाता गंजबख्श लाहौरी की बारगाह तक, तो एक वली के मजार पर नहीं, न जाने कितने वलियों की मजार पर आकर हाजिरी देते हुए तशरीफ लाए थे। समझ में आई बात? और जब आपका गुजर हुआ था, खिदमत पर बोल रहा हूं, दीन और ईमान अता कर देना, इससे बड़ी खिदमत क्या हो सकती। जब आप हरात के इलाका सब्जावार एक जगह थी, वहां से जब गुजर रहे थे, भाई थोड़ी तरफ मेरी तरफ तवज्जो कीजिए। जनाबे मोबाइल से दोस्ती थोड़ी कम कर ले तो अच्छा है। हाँ, ये भी अजीब है, कहीं भी बिजी कर देते हैं। एक अभी सर्वे आया, उसमें लिखा है कि इंसान अपने मोबाइल से 7 सेकंड भी दूर नहीं रह पाता, इतनी मोहब्बत बढ़ गई है। अगर इस कदर मोहब्बत हमें
अपने ईमान अकीदे, हालांकि हम मोमिन हैं, अकीदे पे शक नहीं है आपके, लेकिन जो लगाव होता है, ये लगाव अगर इस तरीके से पैदा हो जाए तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह हर घर के अंदर इल्म वाला वली नजर आएगा। मत्तखज़ल्लाहु वलिय्यन जाहिला, अल्लाह ने आज तक किसी जाहिल को वली नहीं बनाया, इल्म वालों को अल्लाह ने इल्म की विलायत अता फरमाई। बहरहाल मैं अर्ज क्या कर रहा था, ख्वाजा पाक जब वहां से गुजरे तो देखा कि एक बाग है, बागीचा है, वहां हौज था। पिछले जमाने में क्या होता था, पानी मिलता नहीं था, सफर करते थे तो हौज के दरिया के किनारे ठहरते थे। इससे दो फायदे होते थे, एक तो यह कि पीने का पानी मिल जाता था, गुस्ल और वजू का मौका मिल जाया करता था। ख्वाजा पाक वहां ठहर गए और उसका हाकिम था जिसका नाम था मोहम्मद यादगार। अजमेर शरीफ जाइएगा और ख्वाजा पाक के दरवाजा, जो खास दरवाजा जिसमें से दाखिला लेते हैं, है ना, और आपका जो सरहाना मुबारक है गालिबन, तो एक तो अकबरी मस्जिद है और एक छोटी सी मस्जिद बराबर में है। तो आपके कदमों की तरफ आप देखिएगा चंद कब्रें हैं, वहां लिखा है मोहम्मद यादगार। बड़ी पाकीज़ा बात मिरातुल असरार के हवाले से अर्ज कर रहा हूं। उन्होंने फरमाया कि सब्जा वार का जो हाकिम था मोहम्मद यादगार, अकीदे के एतबार से राफजी था और इसका रिव्ज इस कदर बड़ा हुआ था कि अगर किसी का नाम उमर या अबू बकर देख लेता कि इसका नाम उमर या अबू बकर है, उसको कोड़े मारता था। ख्वाजा पाक वहां ठहर गए और ठहरने के बाद उसके जितने खुद्दाम थे उन्होंने कहा, आप हमें सीधे साधे लगते हैं, अपनी जबान में बात कर रहा हूं, तर्जमानी कर रहा हूं, आप यहां से चले जाइए, बड़ा जालिम हाकिम है, आपको तकलीफ देगा, गजन पहुंचाएगा, हमें अच्छा नहीं लगेगा। ख्वाजा पाक ने एक ही जुमला इरशाद फरमाया, कहा तुम अपना काम करो, मैं अपना काम कर रहा हूं। मेरे ख्वाजा ने वहां गुस्ल किया, वजू किया, नमाज पढ़ने लगे। अब उसके आने का वक्त आ गया, लोगों ने अपने एतबार से जो भी कुछ बिछाना था बिछा दिया। हाकिम की नजर जैसे ही ख्वाजा पाक एक अजनबी शख्स पर पड़ी, जलाल में आ जाता है और अपने खुद्दाम को डांटने लगता है। खुद्दाम मारे डर के दरख्तों के पीछे छुपने लगे, कहीं हम पर इनकी वजह से जुल्म सितम ना हो जाए। ख्वाजा पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जलाल में आते हैं और जलाल भरी नजर डाली, जैसे ही नजर डाली फौरन हाकिम मोहम्मद यादगार गिर जाता है, बेहोशी के आलम में, गशी के आलम में पड़ा रहता है। मेरे ख्वाजा फरमाते हैं, थोड़ा सा पानी लो। हौज का पानी लिया गया, उसके चेहरे पर मारा गया, आंख खुली, फौरन कदम पकड़कर बैठ गया और कहने लगा, सरकार माफ कीजिए। उसके बाद कहता है, हुजूर अब तक अबू बकर उमर की नफरत मेरे दिल में थी, लेकिन मेरे दिल में अब अबू बकर उमर की मोहब्बत पैदा हो गई है। मैं यहां नहीं, पूरे हिंदुस्तान के राफजियों से कहना चाहता हूं, ख्वाजा पे तुम्हारा हक ना कल था, ना आज है, ना कभी हो सकता है, इसलिए कि उस जमीन के अंदर आराम करने वाले ख्वाजा पर हक उन्हीं का हो सकता है जो ख्वाजा के अकीदे पर है, और अकीदे पर हम बरेलवी है, इसलिए कि हमारा ख्वाजा सुन्नी था, हम भी सुन्नी है। तवज्जो है। कहता सरकार मैं अपना बागीचा अल्लाह के नाम पे कुर्बान कर रहा हूं। ख्वाजा पाक ने भी तो किया था, इसने भी कर लिया कि हुजूर अब नहीं, मैं साथ चलूंगा। आपके साथ चला और कितना चला, हिंदुस्तान आ गया। ख्वाजा पाक जब पहुंचे सरकार दाता गंजबख्श लाहौरी की बारगाह में, वहां मुख्तलिफ रिवायतें हैं, कुछ एक रिवायतें 40 दिन की भी है। आपने एक दिन बारगाह दाता में अर्ज किया, हुजूर मुझे विलायत की सनद अता फरमा दे। आवाज नहीं आई। दूसरे दिन फिर कहा, आवाज नहीं आई। तीसरे दिन फिर कहा, आवाज नहीं आई। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रोने लगे। तब दाता ने इरशाद फरमाया, मोइनुद्दीन रोता क्यों है? कहा कि आपने जवाब नहीं दिया सरकार, इसलिए। फरमाया, मैंने सनदे विलायत तो तुझे पहली बार में अता कर दी थी, फिर ताखीर क्यों? फरमाया, तो कुरान बहुत अच्छा पढ़ता है। सुभान अल्लाह। मैं वहीं ले आया, हिफ्ज़ कुरान ही की तरफ खींच कर लाया हूं आपको। कुरान की तिलावत बहुत अच्छी है,
मोइनुद्दीन, ऐसा लगता है तू कुरान पढ़ता रहे और दाता कुरान सुनता रहे। अगर पहले इजाजत दे दी होती तो उन्हें पहले रखते सफर बांध लिया होता। मैंने इसलिए जवाब में ताखीर की कि तू कुरान और पढ़, मैं कुरान पाक और सुनता चला जाऊं। यही ख्वाजाए पाक है। जब बगदाद की सरजमीन पर 57 दिन या 5 महीना हजरत गौसे पाक की बारगाह में इक्तिसाबे फैज किया, उसी दरमियान एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई। बस इसी बात को पेश करके बात को खत्म कर रहा हूं। वक्त बहुत ज्यादा हो चुका है, इसलिए अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लेकर के जाता हूं और बता देता हूं, आज के दौर में जो रद्द करने वाले उलमा है उनकी कद्र कीजिए, उनको अपने सीने से लगाइए, उनकी इज्जतों को अपने सरों का ताज बनाइए, वरना जिस दिन ये उलमा खत्म हो गए ना तो फिर आपको दीन सिखाने वाला, सही और गलत में फर्क करने वाला आएगा कौन? जरा ध्यान से मेरी बात को सुनना। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात मुल्क शाम से जब आपका गुजर हो रहा था, तब एक ऐसे बुजुर्ग से हुई थी जिनके जिस्म पर सिर्फ खाल और हड्डी रह गई थी, गोश्त सब गायब हो गया। कहा मोइनुद्दीन 30 साल थे मैं इस पहाड़ के अंदर अल्लाह की इबादत कर रहा हूं। कहा जिस्म की कैफियत क्यों हो गई? कहा मैं सिर्फ इस खौफ से डरता हूं, यह खौफ मुझे सताता है और यह खौफ मेरे दिल में रहता है कि कयामत के दिन जब मेरी नमाजें अल्लाह की बारगाह में पेश की जाए और मेरा अल्लाह मुझसे यह कह दे नमाजें तो पढ़ी थी लेकिन नमाजों की शर्तें पूरी नहीं थी, तो मैं अल्लाह की बारगाह में क्या जवाब दूंगा? कहा इस खौफ ने मेरे जिस्म का गोश्त खत्म कर दिया। जहां नमाजें है ही नहीं वहां क्या हाल होगा? और इनसे मुलाकात हुई, सलाम किया, इशारा किया बैठ जाओ, और बैठने के बाद आपने फरमाया मोइनुद्दीन मैं भी तुम्हारी तरह घूमता था, मैंने भी सफर किए है। कहा सरकार अब सफर नहीं करते? कहा अब सफर नहीं करता। वाकया यह है कि एक दिन मैं एक बाजार से गुजरा था, उस बाजार में एक शख्स था ताजिर जो खरीदो फरोख्त में इतनी जोर से लोगों से बातें कर रहा था कि उसकी बदकलामी की वजह से लोगों पर जुल्म हो रहा था, लोग परेशान हो रहे थे। मैंने उसको नसीहत नहीं की और गुजर गया। ध्यान से मेरी बात को सुनना भाई, इन्नमल इबरतु बिल खवातीम, एतबार खात्मों का होता है। सारी तकरीर ध्यान से सुनी, लास्ट में नहीं सुनी तो उसी का असर मेरे जहन पे बैठेगा। समझ में आई बात आपकी? पूरी जिंदगी बहुत अच्छे काम करता रहा। देखो ना हमारे पास में बरेली शरीफ के पास में एक है जिला, उस जिले के लोगों को देखो आप, एक जमाने तक अच्छे काम करते रहे, अब बिगड़ गए। अब बिगड़े तो मदरसों को कोस रहे। अरे भाई अपने आप को कोसो ना कि तुम पैदा क्यों हो गए। मदरसों का तो बहुत बड़ा एहसान है, ये वही मदरसा है जिसने शेर बचे अहले सुन्नत जैसी ज़ादत हुजूर मुशाहिदे मिल्लत जैसा जबरदस्त मसलक का पाबंद आलिम दीन अता फरमाया। तवज्जो है आपकी? रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीवानों, उन्होंने कहा बैठ जाओ, बिठा दिया। उसके बाद कहा मैं बाजार से गुजरा, मैंने उसको नसीहत नहीं की। जैसे ही बाजार से गुजर गया हातिफे गैबी ने निदा लगाई, कहा अगर तू उसको समझाता वो अपने जुल्म से बाज आ जाता, तूने नसीहत किए बगैर ही अपना सफर जारी रखा। कहा ये एक आवाज थी, गैबी आवाज, जिसने मेरे कलेजे को चीर करके रख दिया। 50 साल हो गए इसी एक कोने में बैठा हूं और रोता रहता हूं इस ख्याल में कि कयामत के दिन मेरे अल्लाह ने मुझसे अगर यही सवाल कर लिया, तूने जालिम को समझाया क्यों नहीं? जालिम तेरी बात से मान जाता, जालिम तेरी बात को मान करके जुल्म को छोड़ देता। कहा इसलिए मोइनुद्दीन 50 साल से इसी कोने में बैठा हूं, इसलिए बहन बेटियां यहां मौजूद है। अगर शौहर गलत काम करता है नसीहत करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अगर भाई गलत काम कर रहा है उलमा की जिम्मेदारी अपने समाज में बुराई देखे और समाज में रहने वालों की भी जिम्मेदारी है। अगर किसी इलाके में वहाबियत फैल रही है, देवबंदियत फैल रही है, सुलह कुल्लियत फैल रही है, उलमा की जिम्मेदारी है जबान बदला करे, वरना कयामत के दिन खुदा ने अगर सवाल कर लिया, तू अगर मस्जिद में खड़े होकर तकरीर करता, हो सकता है तेरी बात को लोग मान लेते। ये हो सकता अपने एतबार से बोल रहा हूं, रब्बे कदीर तो इल्म यकीनी रखता है, उसके यहां सकने का कोई मतलब नहीं। अगर अल्लाह ने पूछ लिया तू उसको नसीहत करता, वो वहाबियत से दूर चला जाता। तू उसको
نصیحت کرتا, سلح کلیت سے دور چلا جاتا, پھر ہم قیامت کے دن کیا جواب دیں گے؟ اس لیے جہاں بھی غلط کام ہو اصلاح کرنا ہماری ذمہ داری ہے, اور ہمیں اللہ نے دوسری امتوں پر جو فضیلت دی ہے اس کا ذکر قرآن میں ہے نا, کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر, تم اس لیے بہتر امت ہو کہ تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اس لیے جب تک زندہ رہو اصلاح کی کوشش کرتے رہو, اور اصلاح کی برکتیں اللہ تمہیں بھی عطا فرمائے گا, اللہ اس قوم کو بھی عطا فرمائے گا جو تمہاری اصلاح پر عمل کرے گی. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان بزرگوں کی روش پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو. زندگی دی گئی ہے اسی کے لیے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم.